بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے. پاک ہے وہ ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں. اے رب ذوالجلال تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے. نظامت کا فن قدرت کی عطا ہے. کوئی ناظم اپنی نظامت سے لوگوں کو سلا دیتا ہے اور کوئی ناظم اپنی نظامت کے ذریعے جگا دیتا ہے. کسی بھی بزم کو منظم کرنے میں ناظم کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے. وہ اپنے جملوں، خوبصورت اشعار اور اپنی ذہانت کے حساب سے محفل کو چلاتا ہے اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. اس کے باوجود بعض اوقات ناظم سے کبھی کبھار کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. قائم ٹی وی نے اسی کی مناسبت سے آج ایک رنگ مزاحیہ پروگرام آپس کی بات ترتیب دیا ہے، جس میں ہمارے قائم ٹی وی کے سچے، باہمت اور باصلاحیت میزبان حضرات اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. ایک احساس کی کہانی ہے، آنسو کیا ہے ورنہ پانی ہے. جھوٹ کے آگے جھک نہیں سکتا، سچ کی بس خون میں روانی ہے. اس پروگرام میں ہمارے معزز میزبان حضرات میزبانی کے دوران جو غلطیاں کرتے ہیں اس کا اظہار فرمائیں گے. اس وقت ہمارے درمیان جو معزز میزبان حضرات تشریف فرما ہیں ان میں عباس نقوی پاکستان، جناب سجاد شاہ جی پاکستان، جناب خاور نقوی پاکستان، جناب میسم رضا پاکستان، جناب طاہر مہدی رضوی کینیڈا، جناب ذوالفقار حسین رضوی جعفری کینیڈا اور جبران زاہدی کینیڈا شامل ہیں. سب سے پہلے میں ایک دوستانی کے حوالے سے بڑے جانے پہچانے ہیں اور قائم ٹی وی کے بہت اچھے ہوسٹ ہیں. ان کا پروگرام رحمت رمضان آج کل جاری و ساری ہے، جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بدھ کے مبارک کی زیارت بھی کراتے ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. اور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بہت بہت تمام ہمارے جتنے ہمارے اس وقت پارٹیسپیٹ ہیں سب کو عید مبارک. تمام دیکھنے والے ناظرین کو عید مبارک. اور آپ کا بہت شکریہ اقبال ندیم صاحب کہ آپ نے اس پروگرام جو کہ آپس کی بات جو کہ بے انتہا خوبصورت موضوع ہے اس میں دعوت دی ہمیں، اور ہم سب ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں اور اپنے اظہار کریں گے جو ہم سے غلطیاں ہوئی پروگرام شروع کرنے میں. تو یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے. میں سب کو دیکھنے والوں کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کیونکہ رمضان ابھی ختم ہوئے ہیں اور خاص سب نے پروگرام بہت اچھے پروگرام سب نے اپنی طرف سے دیے اور سب نے بہت اچھی کوشش کی. قائم ٹی وی کے تمام جتنے ممبران ہیں سب کو میری طرف سے عید مبارک، اور جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں ہم تمام کو عید مبارک. سب سے پہلے آپ اپنا جو سوال ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو مجھے بتائیے. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ خاور بھائی آپ نے نظامت کا کام کب سے شروع کیا اور پہلی غلطی آپ نے کیا کی؟ اقبال صاحب آپ تو ایک نظامت کا ماشاءاللہ سے ایسا ہی زبردست آپ کی نظامت ہے. یہ تو کیا بات ہے، ہم اس کی کوئی الفاظ ہی نہیں تعریف کے. اور میری جو نظامت کا سلسلہ، جو پروگرام کا ہوسٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا، حالانکہ میں نے پروگرام قائم ٹی وی سے ہی سٹارٹ کیے اور میں نے اس سے پہلے کبھی ہوسٹ نہیں کیا تھا پروگرام. تو جب میں نے پہلا پروگرام رمضان کے ہی حوالے سے، جب پہلا پروگرام میں نے اپنا رحمت رمضان آج سے 4 سال پہلے جب شروع کیا، تو اسد زیدی مولانا علامہ اسد زیدی کے ساتھ میرا پروگرام تھا پہلا. اور ہم ریکارڈنگ کریں مطلب جب ایک جگہ پہنچے تو جب اسٹوڈیو میں پہنچے تو تیاری تو تھی کہ ہاں بھائی یہ کرنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن اس بیچ جب پروگرام جب کیمرہ سامنے آیا اور جب ہم کیمرے کے سامنے بیٹھے تو جو بات کرنی تھی وہ تو خیر ذہن سے نکلی. لیکن کیا ہوا کہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران ہاتھ پیر جو تھے نا اپنے طور سے خود ہی خود موومنٹ کرنے لگ گئے. اب جو مجھے
जो मेरे जो हमारे खुर्शीद साहब, जो आपको पता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, तो वो साथ थे उस वक्त, कैमरामैन हमारे साथ थे। तो अच्छा, वो मुझे एक बार बोली उन्होंने कि खावर प्लीज पैर नहीं हिलाइए। अब ब्रेक करके उन्होंने मुझे ये बात बोली कि आप पैर हिल रहा है। मैंने कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं हिलेगा। दोबारा मैंने शुरू किया अपना प्रोग्राम होस्ट करना, और तो जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया तो फिर वही कि समझ ही ना आए किस वक्त पैर कौन सा हिल रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा। बस वो मैं सवाल कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, वो मुझे जवाब दे रहे हैं, और मेरे हाथ पैर जो है वो उनपे लर्जत आ रही है खुद ही खुद। तो ये प्रोग्राम काफी, तकरीबन 3 प्रोग्राम मेरे, जो शुरू के 3 प्रोग्राम हैं, जो अभी भी आप देखेंगे तो वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, वो एज इट इज गए, क्योंकि मुझसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, और वो मुझे पता भी नहीं चला पैर किस वक्त हिलने लग जाता है। तो ये मेरे प्रोग्राम के सबसे बड़ा जो मजाया एक प्रोग्राम था, जो हमने, मतलब एक सीरियस प्रोग्राम जिसमें हम रमजान में एक बेहतरीन मौजू के साथ बात कर रहे हैं, और उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी और मैं बहुत परेशान था। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो अब इतना हो गया कि अब आप तमाम की वो है, आप सबको, जो आप सीनियर्स हैं, जितने हमारे काइम टीवी के होस्ट हैं, जिन सबको इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग देते हैं, और आप लोग इतनी अच्छी निजामत कर रहे होते हैं, इतनी अच्छी होस्टिंग कर रहे होते हैं इकबाल साहब आप, तो आप सब हमारे सीनियर हैं, आपको देख के ही हमें सीखने को मिलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ही इसको अपनी चीज को ठीक किया गया, और प्रोग्राम देख देख के पता चला कि कहाँ क्या करती है। तो ये मेरा प्रोग्राम। बहुत अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। और माशाल्लाह, अब तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली बोली, लग रहा है कि आप माशाल्लाह से काफी तजुर्बा आपको हासिल हो गया है। जी सर, ये सीख के, मतलब ये प्रोग्राम जब देखे और जब मैंने अपनी चीजों को देखा कि मेरा तो भाई तलफ्फुज भी नहीं आ रहे कुछ अच्छे अल्फाज, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये कैमरा एक ऐसी चीज है कि इंसान कितना ही बड़ा कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आता है थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये तो आपने खुद भी देखा होगा प्रोग्राम निजामत के होस्ट, ऐसे ही होता है। बिल्कुल तो होता है। ये कैमरा जो फेस करना है ना, ये मुश्किल काम है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ होता है। जी नदीम भाई, अच्छा, हमारे जो अहबाब यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो भी सवाल कर सकते हैं, और वो भी इसको अपने तो इसमें शामिल हो सकते हैं। खाली मैं इसकी होस्टिंग नहीं कर रहा, आप सब भी होस्ट हैं इसके, आप मेहमान भी हैं और होस्ट भी हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल नदीम भाई, मैं सवाल तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि खावर माशाल्लाह बड़ी हकीकत पसंदी के साथ इन्होंने जो है अपना एक वाकया सुनाया, और ये हकीकत है कि पहली दफा माइक के सामने आना, और ये तो कैमरे की बात कर रहे हैं, माइक पे पहली दफा माइक पे जब आदमी आता है तो वो वाकई उसी कांपे टांगने लगती है, मतलब कांपे टांगने लगती। मेरा तो इंटरेक्शन था, पब्लिक से इंटरेक्शन था, क्योंकि सोसखानी में तकरीबन 20-22 साल से कर रहा हूँ, और काफी बड़ी बड़ी, जब मैं इकबाल साहब तो इस बात पे खुद गवाह है कि सोसखानी हमने काफी बड़े बड़े जगहों पर सिलसिला रहा, तो वो तो इतना इशू नहीं था, लेकिन बस कैमरा एक अजीब वो दिमाग में चीज थी कि वो कैमरा देखते ही वो जैसे, हालांकि वो कैमरा ही है, कुछ वो कोई बंदा नहीं देख रहा मुझे, खाली कमरे में कैमरामैन खड़ा हुआ है, लेकिन वो खुद ही खुद हाथ में नहीं निकल रहा है। जी उसमें से कोई हाथ नहीं निकल रहा, मैं कह रहा हूं उसमें से कोई हाथ नहीं निकल रहा। लेकिन ये चीज खुद ही खुद आपकी उससे हो रही होती है, और ये तो वाकई में हेजिटेशन होती है। जी अच्छा जुल्फिकार साहब, मैं भी एक अपना किस्सा को सुना दूं। आप कहेंगे आपने बताया नहीं अपना कोई किस्सा। मैं एक दफा एक प्रोग्राम बिल्कुल मैं निजामत कर रहा था, बड़ा प्रोग्राम था, और वो इमाम हुसैन इस्लाम के यौम हुसैन के हवाले से था, और उसमें आईएसएन को इनवाइट किया गया था बहस निमान खुसूसी की। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोग्राम जारी था, मेरे कान में आके मुंतजिम ने कहा कि भाई वो आईएसएन तशरीफ लाने वाले हैं। मैंने फिर दोस्तों पर जाकर ऐलान किया कि भाई हमारे मौजूद मेहमान खुसूसी आईएसएन पुलिस करीब तशरीफ लाने वाले हैं और आपसे खिताब फरमाएंगे। वो भागते फिर कहना, भाई आपने क्या कह दिया? मैंने आपने कहा ना तो कि वो आने वाले हैं। कहना भाई वो उन्होंने मना किया, मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा भाई मौजूद मेहमान गिरामी जो हमारे मौजूद आईएसएन थे आने वाले थे, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से वो अभी आ नहीं सके हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, फिर आपसे खिताब फरमाएंगे। और फिर मैंने 2 शेर पढ़ के ना
आगे बढ़ा दिया लेकिन सर ये भी हो जाता है। आपकी जो ये वाली बात थी ना कि नाजिम जो होता है वो महफिल को जगाता है और नाजिम ही महफिल को सुना देता है, ये आप 100% इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ इफ्तिखार भाई ये जिब्रान भी आए हुए हैं और जिब्रान अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। नजीब लागा बड़ा मशहूर हो रहा है इनका ये प्रोग्राम, माशाल्लाह पसंद भी किया जा रहा है। और इन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं ऑफिस के दरमियान जो मेरा लंच टाइम होगा उसमें आऊंगा, तो आप मुझे पहले मुझे तो जिब्रान आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप निजामत में कब आए, कैसे आए और आपने गलतियां क्या क्या की अब तक? इकबाल भाई, पहले तो मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन, तमाम अहले जो मुसलमान हैं, सब तमाम को दिली ईद मुबारक। खसूसी तौर पर हमारे पार्टी तमाम लोग मौजूद हैं, दिली ईद मुबारक मेरी तरफ से। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इकबाल भाई आपका, खसूसी तौर पे काइम टीवी की इंतजामिया का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदद किया। तमाम मेरे माशाल्लाह सीनियर और जिनके मैं प्रोग्राम देखकर सीखता हूँ, खसूसी तौर पे खावर भाई का प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जो मेरी अम्मी भी बड़े शौक से देखती हैं, जिसमें ये खुद के इमाम बारगाह जाते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। इसके अलावा आलिम ऑनलाइन के हमारे भाई जी। तो इकबाल भाई, जिस तरह मैंने शुरू किया वो तो है, मगर मैं वाकई में बताऊं कि मैंने आप लोगों के प्रोग्राम, खसूसी तौर पे इफ्तिखार भाई मेरे यहाँ पर होते हैं, ये बड़ी हौसला अफजाई करते हैं, सिखाते हैं, प्रोग्राम देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्राम देखकर मैंने तकरीबन 2 से 3 साल पहले निजामत का सिलसिला शुरू किया था। और माशाल्लाह यही है कि आप लोगों के प्रोग्राम देख कर सीखने का मौका मिलता है, और कंटिन्यूअस ये है एक चीज़ के इम्प्रूवमेंट का सिलसिला रहता है। तो इफ्तिखार भाई माशाल्लाह देते रहते हैं फीडबैक, तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करें। और जैसा कि आपने बोला है कि दर्से नहजुल बलागा प्रोग्राम जो है वो हर इतवार को काइम टीवी पर कनाडा टाइम के मुताबिक 2 बजे होता है, जो पहले इफ्तिखार भाई ही करते थे। उन्होंने ही मुझे कहा कि ये प्रोग्राम मुझे करना चाहिए, तो फिर मैंने ये शुरू किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी जैसे खावर भाई बता रहे थे, माशाल्लाह ये मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है, बल्कि अब तक होता है कि ये सिलसिला जो होता है। मगर मेरे साथ जो एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया था, वो ये हुआ था कि मैं वैसे ज़्यादातर जश्न शुरू में मैंने करना शुरू किया। पहले मुझे जश्न के लिए, निजामत के लिए बुलाया जाता था, तो वो मैं आदी हो गया था वो करने में। मुझे पता था क्या बोलना है, किस तरह करना है। यूजली स्क्रिप्ट होता है, वो देख लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे पहली दफ़ा ईसाने सवाद का लिए बुलाया गया और निजामत थी, उसमें मुझे करनी थी। तो और वो अलअजल एक वो है, उस पर मैंने कर रहा था उस पर। तो मैंने क्या किया कि फातिहा का टाइम आया, पढ़वाना था कि मरहुमीन के लिए आप सूरह फातिहा पढ़वाएं। तो मैंने मरहुमीन के बजाय मैंने मोमिनीन की फातिहा पढ़वा दी। बस वो एक मेरी ऐसी थी कि जो मुझे यादगार रही। फिर मैंने कहा तो वो फिर मुझे बाद में उसका बड़ा फीडबैक आया था कि ये जरा साहब पे थोड़ा गलती कर दी है। तो ये था, मैंने कहा कि ये अब हम फातिहा पढ़वानी है, तो जितने भी मोमिनीन हैं तो उनकी फातिहा। तो अच्छा, मुझे इस वक्त याद आ रहा है कराची उसमें यौम हुसैन हो रहा था, तो उस वक्त एक नाज़िम थे अस्करी साहब, उन्होंने एक आलिम दीन को इनवाइट किया कि और अब इस मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा रजी साहब अला मकाम हूँ, आपसे खिताब फरमाएंगे। तो अल्लामा साहब ने आकर कहा, भाई मैं अभी जिंदा हूँ, आज अल्लाह मकाम हूँ, मरहूम किन्हें कहा जाता है। जी ऐसी गलतियां हो जाती है अक्सर में। अच्छा, हमारे ये मीसम रजा भी तशरीफ रखते हैं और ये हमारे कराची के बड़े अच्छे होस्ट हैं, और आजकल ये प्रोग्राम कर रहे हैं मालूमाती मालूमात। ये अच्छा प्रोग्राम है और नए स्टाइल से काइम टीवी शुरू किया है। इसमें एक फीमेल और एक मेल दोनों बैठ के मालूमात फराहम करते हैं हमारे नाज़रीन और सामीन को। तो मीसम, आप बताएं आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं? जी अकबाल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। तमाम नाजरीन को, जितने भी इस वक्त मेरे सारे उस्ताद और निजामत के उस्ताद इसको बैठे हुए, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आपको बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक।
मैं तो निजामत के एतबार से तो लाइव प्रोग्राम तो इतने मैंने नहीं करे जो महफिलें होती हैं, लेकिन ये कि टीवी प्रोग्राम जो कायम टीवी के क्रेडिट जाता है कि मैंने कायम टीवी से स्टार्ट लिया, इस्लाम 24/7 मेरा प्रोग्राम चलता है। उसके बाद फिर काफ़ी सारे प्रोग्राम हमारे होते रहे और चीज़ें चलती रही। एक वाकया जो पेश आया, अब्बास भाई यहाँ मौजूद है, अब्बास भाई के साथ मौका लगा हमारा प्रोग्राम करने का। हम लोग लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे अरबईन के बाद, अरबईन की हमने काफ़ी सारी ट्रांसमिशन करी। उसके बाद हम लोग लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, लाइव प्रोग्राम हमारा चल रहा था हमारे मसाइल के एतबार से। वसीम भाई भी मौजूद है, वो भी उसका हिस्सा थे। उसमें हुआ ये कि हमने मेहमान उसमें आते थे, हम लोग डिफरेंट मसाइल पे डिस्कस करते थे, सारे मसाइल चीज़ें चल रही थी, मैं उसकी निजामत कर रहा था और अब्बास भाई उसमें थे, उसमें तज्ज़ियाकार के तौर पे मौजूद थे। जाहिर सी बात है अब्बास भाई के पास तो मवाद है बोलने के लिए, उनको तो आप कोई भी टॉपिक देते हैं बोलना शुरू कर देंगे। हम जैसा कम इल्म जिसके पास अल्फाज ही नहीं, वो क्या करे, उसको तो जो लिख के दिया है बोलने में उनको माशाल्लाह से बड़ी, हमारे पास तो जो लिखी हुई चीजें हम माशाल्लाह में सर। तो उसमें जो मेहमान हमारे मौजूद थे, उनकी नेट के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, शायद लाइट चली गई। अब हम लोग गुफ्तगू करते करते आ गए कराची की, तो मैंने ही वो गुफ्तगू स्टार्ट किया। हम लोग आ गए कि कराची में सियासी तौर पे ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। मैं प्रोग्राम चला था हमारा लाइव, मेरे पास कुछ बोलने के लिए था ही, जो मेहमानों से पूछना है, मेहमान तो चले गए, अब बोलेंगे तो क्या बोले, और प्रोग्राम चल रहा है लाइव। अब मैंने अब्बास भाई बोला, अब्बास भाई देखे कराची में ये हो रहा है, कराची में। अब्बास भाई को तो क्लू चाहिए, अब्बास भाई को तो आप क्लू दे दे। अब्बास भाई ने बोलना शुरू कर दिया। पीछे से मुझे शहरियार जो हमारे सर, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, ये कहाँ जा रहा है प्रोग्राम, कौन इसको देगा, कौन करेगा इसको, ये कौन सी बात तुमने शुरू कर दी है, तुम नाजिम हो या वो नाजिम हो, रोको इसको। तो मुझे बड़ा, और प्रोग्राम में हमारा लाइव था, तो वो बड़ा एक अच्छा, मुझे थोड़ा सा फीडबैक भी आया, फिर तासुरात भी बड़े अच्छे लगे कि यार ये लाइव प्रोग्राम करना वाकई एक कमाल है, मुश्किल काम है, लेकिन वो हमारे बड़े अच्छे प्रोग्राम रहे उसमें। उस प्रोग्राम में वसीम भाई भी हमारे साथ कनाडा से मौजूद होते थे, अब्बास भाई कराची से होते थे, हमने बड़े अच्छे वो प्रोग्राम किए, उसमें काफी तजुर्बात हुए जी। वही नामों की गलतियां बहुत हुई उसमें, होस्ट वो मेहमान को ये, मैं उसको इंट्रोडक्शन कुछ करा रहा हूँ, वो आके फिर बाद में बोले भाई मेरा नाम ये है, अल्लामा आपने लगा दिया, अल्लामा नहीं है, आपने शायर बोल दिया, शायर। हाँ, तो वो काफी सारी चीजें उस तरह से हुई। और इसमें मैं एक चीज और इकबाल भी आपको बोलना चाहूंगा, ये आपको क्रेडिट जाता है इस वक्त जो आपने ये महफिल सजाई है। हमने अब्बास भी, आपको याद होगा उस जो हमारे मसाइल प्रोग्राम कर रहे थे, हमने हर तबके के मसाइल को डिस्कस किया था। बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं आपके उसमें। तो उसमें अब हमें फील ये हो रहा है मुझे कि हमें निजामत के इस डिपार्टमेंट को भी हमें डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है, या इससे कहना चाहिए वो मजलूम डिपार्टमेंट है, जो सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है। सही बात है। और ये पूरे प्रयास हमने हम तो खुद क्या डिस्कस करते हमने, आप उसको डिस्कस करते ना। नहीं बिल्कुल, अब हमें एहसास हो रहा है, जब दो आदमी बैठे होते हैं, जब दो आदमी बैठे होते हैं तो वो हदीसी के साथ से स्टार्ट करता है, और जब मजलिस पीक पे चली आती है और उसके बाद मातम हो जाता है और ज़ियारत होती है, उसके बाद फिर वहां से निकलता है। जब वो वहां से निकलता है तो उसको मुंतज़मिन कोई भी उसको वो नहीं करते कि यार आपने इतना टाइम दिया, यार आपका शुक्रिया, वो उसको कहां तक छोड़ देते ये भी करते हैं। कंप्लीटली थैंकलेस है ये काम। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल आप एग्री करते हैं बात से मेरी? नहीं बिल्कुल इकबाल भाई, ऐसा होता है कि आप पूरा प्रोग्राम चला के जब पसीना पसीना शराब हो के प्रोग्राम खत्म हो रहा होता है, उस एक तरफ फोटो बन रहे होते हैं और एक तरफ नाज़िम जो है वो अपने कपड़े खुश कर रहा होता है खड़ा हुआ। तो ये गलत रिवायत है। मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी मिस्कीनियत जो है हमारे यहाँ सोसपा हजरात के लिए भी, हमने प्रोग्राम भी किया था इस मौजूद पर बाकायदा, मिशन को याद होगा कि सोसपा हजरात बेचारे खुद आते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद सुनते हैं, खुद चले जाते हैं, तो ये उनके साथ बड़ा जुल्म है, उनको वो मुकाम भी नहीं दिया जा रहा होता। तो बहर खैर, हम तो जब मेजबान कह लिया अपने आप को, तो मेजबान कहने के बाद क्या शिकवा और कौन सी शिकायत सब जाएगी। लेकिन ये इस निजामत के जहान में हम इकबाल भाई को देखते हुए बड़े हुए, इकबाल भाई को सारे इस वक्त, तो मैं तो कहीं ना कहीं छोटा सा सितारा इस वक्त मौजूद हूँ, जो इतने सारे जगमगा रहे हैं, तो हमारे
माशाल्लाह मीसम भाई आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत बहुत माशाल्लाह आपका प्रोग्राम। मीसम बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं आप माशाल्लाह से। मैंने स्टार्टिंग में जब तुमने शुरू किया था प्रोग्राम, तुम्हें याद होगा तो मुझे मैसेज किया करते थे कि इफ्तिखार में जरा चेक कीजिएगा प्रोग्राम को, तो उस तुम्हारे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आई। सारे के अब्बास भाई जैसे लोग, इकबाल भाई जैसे लोग, ये लोग सर पर मौजूद हैं, तो मौजूदगी में सर नहीं, ये बात बिल्कुल, मैं अब्बास भाई सब मौजूद हैं। जो हमने लाइव ट्रांसमिशन अरबईन की करी, उसके बाद हमने हमारे मसाइल प्रोग्राम लाइव किए, बड़ा कॉन्फिडेंस दिया अब्बास भाई ने। मतलब ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जो खुद आगे करते हैं दूसरों को, भाई तुम करो। अब्बास भाई ने मुझे बोला कि नहीं तुमने करना है, सारे को गलतियां होंगी ना, मैंने उनको बोला अब्बास भाई गलतियां होंगी लाइव प्रोग्राम। अब्बास भाई ठीक है तुम करो, गलतियां होंगी ना मैं हूँ तुम्हारे पीछे, करो। और वाकई इट्स क्रेडिट गोज टू अब्बास भाई। इकबाल भाई वैसे दो जुमले माशाल्लाह से इतनी बात की। नहीं मिसम, आप में जो है चूंकि जरासीम पूरे नजर आते हैं, और हमसे ऊपर वालों ने यही सिखाया कि अपने साथ के, मतलब हमें जो है वो, अगर इकबाल भाई जैसे लोग, नदीम नकवी जैसे लोग, इनके लोग अगर हमारी हौसला अफजाई ना करते तो हम किस काबिल थे। तो बार मेरे हिसाब से तो खैर ये वाली बात है कि ये बीबी की आता है, माशाल्लाह तुम पर है। 30-35 साल से निजामत कर रहे हैं अब्बास भाई, और बड़ा अच्छा। नहीं, अब आपने इकबाल भाई, अब्बास भाई की एज बता दी, इसका मतलब आपने 30-35 साल से। अब देखिए इकबाल भाई, आप मान लीजिए कि मैं तो अब्बास भाई को, इकबाल भाई मैं तो बचपन से ही देख रहा हूँ। अब्बास भाई आपको याद होगा, मतलब आपकी भी ज्यादा एज है। आप तंजीम अखबार में जब आप कॉलम लिखा करते थे, तंजीम अखबार निकलता था जिस वक्त शमसी और सरवत उसके सदर जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो मैं कारवान और मोहम्मद का नोहा खान साहिब था जामतिया से, और डॉक्टर रेहान आजमी के घर पे आपका आना जाना बहुत, तो हम लोग पता नहीं 25वीं लाइन के लोग थे, तो इतनी दूर से आप लोगों को देखा करते। हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि आप लोगों के करीब भी आकर बैठ सकें, क्योंकि आपको याद होगा आप कॉलम लिखते थे तंजीम अखबार में, और जब मरकज तंजीम की मीटिंगें हुआ करती थी अंचोली में ऊपर तबलीग इमामिया के दफ्तर में, तो हम भी अक्सर आया करते थे उस मीटिंग के अंदर अंजुमन के हवाले से। तो आप लोग तो मतलब जाहिर है कि इतने सीनियर और माशाल्लाह से एक अरसे से इस फील्ड के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग सीखते ही आप लोग को देख के, इकबाल भाई हुए या आप तो माशाल्लाह बहुत सीखा आपने माशाल्लाह। आप बिल्कुल नहीं बोले, क्या बात, नाराज है कुछ हमसे? किससे बात कर रहे हैं आप? जुल्फकार भाई इकट्ठे ही बोलेंगे। म्यूट पर हैं जुल्फकार भाई, म्यूट पर हैं। अच्छा, वसीम भाई भी नजर आ रहे हैं हमें। वसीम भाई भी माशाल्लाह से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम इन्हें अपनी बंद में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, हमारे दरमियान जुल्फकार भाई कराची की एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, जिन्हें सब शाहजी कहते हैं, सज्जाद शाहजी। आप इस वक्त एक प्रोग्राम कर रहे हैं आलिम ऑनलाइन, जो कि समझ लिए इस वक्त IMTV का बहुत मशहूर प्रोग्राम है, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम को इन्वाइट करते हैं और उनसे तमाम मजहबी सवालात भी करते हैं। तो सज्जाद भाई, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा जो सबसे कर रहा हूँ, आपने अब तक कितनी गलतियां की हैं, और उन गलतियों का थोड़ा कुछ हमें आगाह फरमाएं उन गलतियों से। इकबाल भाई, वो सज्जाद आपसे एक बीच में वो कहना था, एक माजरत के साथ, कि मेरी, जैसा कि आपने बोला था कि जॉब का टाइम है, तो मुझे आप इजाजत दें। मगर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया आज के प्रोग्राम में। मेरे तमाम सीनियर और बहुत पसंदीदा आज होस्ट यहाँ पे मौजूद थे, जिनसे मैं बहुत सीखता हूँ। इंशाअल्लाह मैं ये प्रोग्राम जरूर देखूंगा। आप प्लीज नहीं, आप प्लीज अपने बारे में बता दें। सब मसला नहीं, मुझे पता नहीं था, आप मुझे नजर नहीं आ रहे थे, मैं आपसे बात कर लेता। आप प्लीज कोई जल्दी से अपना वापस सुना दीजिए। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, मैं बता चुका, मेरी तो आ गई बारी, मैं बता चुका था, बस मैं इजाजत मांग रहा था आपसे कि इंशाल्लाह फिर मैं जी। बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, यहाँ पर बिल्कुल फिलबदी लाइव जो रिकॉर्डिंग है, इस फिलबदी में ही देखिए इकबाल भाई एक हो गई। देखिए फौरन कुछ देर कब जिब्रान से इकबाल भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सबसे गलतियां पूछ रहे हैं ना, तो साथ में ये भी पूछें कि उस गलतियों का खमियाजा क्या हुआ। सही बात है। क्योंकि बात यह है कि गलती ऑन एयर हो जाती है ना, मगर जब हम पब्लिक में जाते हैं तो वो पब्लिक कहते हैं यार तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसा बोला, तो वो खमियाजा हमारे सामने होना चाहिए। अभी तक किसी ने ऐसी गलती बताई नहीं है अपनी जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ा हो।
جی میں بتاؤں بات بتائیے. میں بتاؤں صحیح نہیں بتائیے. جب میرا ٹرن آئے گا میں بتاؤں گا. جی بالکل بالکل, میں بھی بتاؤں گا ایک اور اپنی غلطی انشاءاللہ. میں نے بھی بہت غلطی کی ہوئی ہے, کچھ چیز سیکھا ہے تھوڑا بہت. اچھا سجاد بھائی آپ ذرا پلیز آ جائیں. جی سجاد بھائی. سجاد شاہ جی کا مائک میوٹ ہے, وہ مسلسل بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی ہے. شاہ جی مائک کو انمیوٹ کر لیجئے. جی ہاں جی اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ رہی ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. تمام مومنین کو بہت بہت عید مبارک. اور اقبال بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنی عزت بخشی ہے کہ مجھے اتنے قابل ترین لوگوں کے درمیان میں آنے کا موقع دیا ہے. یہ میرے لیے واقعی میں باعث افتخار ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ ہماری انسپریشن ہے. خاص کر اقبال بھائی, عباس بھائی, کیا بات ہے, سلامت رہیں آپ لوگ. اچھا یہاں میں روک کے اقبال بھائی مجھے اگر تھوڑی سی اجازت آپ دیں. ماشاءاللہ ویسے تو گلدستے کے جتنے بھی پھول ہیں اپنی اپنی جگہ پہ, تمام کے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے کام کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی جگہ بنائی ہے اور لوگوں کو آپ راہ مشعل ہے کہ لوگ آپ سے سیکھتے ہیں. سجاد شاہ جی کا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جو انہوں نے کسی قبرستان میں جا کے, میرے خیال میں نصیر اشتہادی صاحب کے اوپر ان کی دار پہ جا کے آخری آرام گاہ. تو وہ میں دیکھ رہا تھا. ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور ایسا ایک ماحول جو تھا وہ ذرا خوشی کا ماحول تھا. بچوں کی ہے نا کوئی برتھ ڈے قسم کی کوئی بات تھی, لیکن اس پروگرام کو چند لمحے جب لوگوں نے دیکھا تو سب ہمارے یہاں سائلنٹ ہو گئے, کہہ لیں یار یہ بڑی انفارمیشن پروگرام آ رہی ہے. اور وہ جتنی دیر کا پروگرام تھا ہمارے گھر میں سب نے بڑی توجہ سے دیکھا, اور جو اس میں آپ نے اردو کے الفاظ اور جو اس میں لغت اور جس خوبصورتی سے پرو کے آپ نے استعمال کیے تھے, جب تک وہ اینڈ نہیں ہو گیا یقین کریں شاہ جی وہ ہمارے پاس چلتا رہا. پھر میں نے شہریار کو فون کیا, میں نے کہا کہ یار ان کا اپریشیٹ تو بنتا ہے, میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا. تو میں نے کہا یار یہ جو سجاد شاہ جی ہیں جنہوں نے پروگرام کیا ہے, اتنی خوبصورتی سے پروگرام کو سٹارٹ کیا اور اتنی خوبصورتی سے اینڈ کیا کہ از امپریسو, کہ کہیں ایسی محفل ہو کہ جہاں ہلا گلا ہو رہا ہو, خوشی کا ماحول ہو, لیکن وہاں پر یہ اس کے اوپر طاری ہو جائے, بہت بڑی بات. کیا بات, بہت شکریہ. بہت عمدہ پروگرام تھا, بہت اپریشیٹ کیا اور بہت معلوماتی تھا. اچھا پروگرام کیا تھا اور ان علماء کو بہت شکریہ. آپ لوگوں کے یہ کلمات کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہیں واقعی. وقتی طور پر ہم بھول چکے تھے جن علماؤں کو جو اس دنیا میں سے چلے گئے تھے, مگر آپ نے ان کو پھر دوبارہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا, تو ہمارے ساتھ ان کی یادیں بھی تازہ ہو گئی. بہت خوبصورت پروگرام تھے سارے. کوشش کی بس. اچھے خطیب بھی ہیں ہمارے سجاد بھائی, یہ خطابت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور ضمن بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ بھائی اقبال بھائی آپ غلطیاں پوچھ رہے ہیں, وہ تو اتنی ہیں کہ اگر بتانی شروع کری تو پھر یہ پروگرام ناکام ہو جائے گا. ہم نے تو ایک دو غلطی کہا, ساری غلطی نہیں بتائی ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے بھائی. جیسے خاص ذکر کر رہے تھے نا کہ جیسچر آپ کو پورا جو ہے وہ شیٹرڈ ہو جاتا ہے. تو جب ہم نے فرسٹ ٹائم مائک پکڑا تو ایک پروگرام تھا, اس میں ایک سیگمنٹ ہمیں ملا کہ اس میں آپ تھوڑی دیر کی جو ہے یہاں پہ کمپیئرنگ کریں گے. یہ بات ہے سعودی عربیہ کی, اس وقت میں سعودی عرب میں تھا, ریاض میں. تو ہم نے مائک پکڑا, اور مائک پکڑا تو صاحب کیا ہوا کہ پہلے آواز کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو گیا. ہم نے سوچا دوسرے ہاتھ سے اس کو سہارا دے دیں. جب دونوں ہاتھوں سے پکڑا تو دونوں ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے. وہ اس قدر بری پرفارمنس تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک عرصہ ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی مائک پکڑے یا کمپیئرنگ کرے یا کچھ ایسا کرے. اور ایک دفعہ کا میں آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں, ایسا بھی ہوا کہ میں ایک میلاد میں تھا اور میں کچھ اشعار سنا رہا تھا. تو ایک صاحب جو تھے, یہ بھی سعودی عربیہ کے واقعہ ہے, اور وہ گیدرنگ وہی ہوتی تھی ہر میلاد میں, جاننے والے وہی لوگ ہوتے تھے. تو ایک صاحب نے دوران میلاد میرے پڑھنے کے دوران ہی کہا کہ آپ نے وہ جو اس دن فلاں شعر سنائے تھے وہ سنا دیجئے, وہ بڑے زبردست تھے. اور یقین کیجئے مجھے ایک بھی شعر یاد نہ ہے. اور میں ان کو کہا جی اچھا آپ ایسا کیجیے, آپ جو ہے صلوات پڑھیے. اور میں ریکال کر رہا ہوں اسے ذہن کے اندر, 12 دیگر صلوات پڑھیے, اور وہ ریکال نہیں ہو رہا کسی صورت. تو میں نے اس وقت اس شعر کے ایک مصرے کے ساتھ ایک مصرا کہیں اور سے, ایک مصرا کہیں اور سے, وہ لے کے جو اس کا ایک آپ کہہ لیجیے کہ کھچڑی بنا کے پیش کر دی. وہ لوگوں کو نہیں پتا چلی, مگر مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں گڑبڑ کر دیا.
ऑपरेशन कर दिया उसका, ऑपरेशन कर दिया पूरा उसका। क्या बात है जबरदस्त। ये भी आपकी तो ये बिल्कुल आज तक याद है, इस तरह हो जाता है। ये भी सज्जाद शाह जी, ये भी टैलेंट है। ये भी देखिए फिल्मबदी किसी काम को करना और उसको निभा देना, ये भी बहुत बड़ा काम है। अरे किबला पूछे मत, उस वक्त तो पैरों से नीचे से जमीन निकल गई थी कि होगा क्या। और इस काम में जितना रियाज हमारे अब्बास भाई को है, अब्बास भाई को बहुत रियाज है माशाल्लाह, इतना खूबसूरती से संभालते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वसीम भाई संभाल लेते हैं, बड़ी मोहब्बत है। आप असल में आपका पैच पता नहीं चलता, हम लोगों के पैच पता चल जाएंगे, आपके पैच हमें बिल्कुल नहीं पता चलता कि कहाँ से आपने पैच लगाया इस पे। ये बड़ा कमाल, ये बड़ा कमाल, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, अनीस भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे नजर आ रहे हैं उस पर। जी नजर में। अनीस भाई, आप तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के पुराने साथियों में से हैं, और नौहा ख्वानी भी करते थे, मनफूत ख्वानी भी करते थे, और अब आप यूएस में हैं और हमारे कायम टीवी से माशाल्लाह से होस्टिंग भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह भाई, आपने होस्टिंग कब से शुरू कर दी? ये असल में हुआ ऐसा कि हमारी जो बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त हैं इफ्तिखार रिजवी, तो वो मसरूफ हो गए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हिस्सा ले लीजिए इसमें। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये बात बावर भी करवाना चाह रहा हूँ कि मुझे इससे फ़ायदा कितना हुआ है और मेरा एम क्या है। मेरा एम ये था कि मैं ऐसे उलमाओं को यहाँ लेके आऊँ जो कि छुपा हुआ ख़जाना है, जो कि हमें नज़र नहीं आते। क्योंकि मैं मुख्तलिफ टीवी पे आता हूँ, टीवी पे और अहल टीवी पे और हिदायत टीवी पे, तो मुझे पता है कौन कौन से ऐसे आलिम दीन हैं जिनको हाईलाइट नहीं हो पाते वो। तो मैंने उनको मदऊ किया, और उनको मदऊ करने के बाद फिर उनसे सवालात जो भी मेरे पास इल्म है टूटा फूटा, उसमें सवालात किया, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया इस बात को, और ये होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल है। और दूसरी बात ये थी कि मैंने सोचा कि मैं जब ये कायम टीवी पे मुझे ये मिला है सिलसिला कि मैं हाउसिंग करूं, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों न फाइनेंशियल तौर पर हम इम्प्रूव करें। तो इसलिए मैंने दूसरे जगह से रब्ता कायम किया, और कल इंशाल्लाह ताला एक ने मुझसे वादा किया है कि मैं आपको एडवर्टाइज भी दूंगा कायम टीवी के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पर इसको स्टेकम होने की बहुत ज़रूरत है। और ये हर इदारा जो हम टीवी, जहाँ पे हम टीवी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ऐसे एलिबेट टीवी है या हिदायत टीवी है या हैदर टीवी है, वहाँ पे ऐड आते हैं, तो ऐड आने से थोड़ा बहुत फाइनेंशियल तौर पर उनकी मदद भी जाती है। और दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि अब इंशाअल्लाह ताला जुमरात को जो भी प्रोग्राम हो, उसमें अगर मरहूमीन के लिए सारे सवाब की मजलिस है, तो हर मरहूमीन के लिए कुछ आप ऐसा डोनेशन का सिस्टम करें ताकि लोग सब शामिल हो जाएं इसमें, और ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। मैं ये चाह रहा हूँ, और इसमें मुझे काफी कामयाब। जी फरमाइए अनिल भाई, हमारी जो है ना महफिल जो है थोड़ी आसानी की है। जी मुझे मालूम है। जी और आपने अभी तक अपनी गलती तो बताई नहीं, छुपाए रहते हैं आप। गलती तो बताइए आपने। असल में हम इसलिए बैठे हैं हम आपकी गलती को आया कर दें जरा। गलतियां तो बहुत हुई हैं, बल्कि मैं आपके साथ ही मैं एक दफा मैं गया था कहीं पे स्टूडियो में, आपको शायद पता होगा नहीं होता, आपने मुझसे कहा था आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आप मनकबत पढ़ लीजिएगा। मैं वहाँ पे पहुंचा, खड़े तकरीबन 3 घंटे हो गए। अब मैं इंतजार करता था कि भाई वो मुझे बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। जब मैं अंदर गया, ये जो प्रोग्राम होता था इसमें टीवी पे, ऐसी टीवी तो नहीं था बल्कि रेडियो का सिस्टम था उस जमाने में। आपने मुझे बताया आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पे आप अपने ये मनकबत जो भी नोहा पढ़ना है, सलाम पढ़ना है, वहाँ पे पढ़े। आखिर में उन्होंने बुलाया, वो कहले आप क्यों आए? मैंने कहा भाई मुझे नदीम साहब ने भेजा था। कहना अच्छा हाँ आइए। काफी यानी बहुत देर के बाद उन्होंने मुझे मदद किया। असल में मसला मेरे साथ यही हुआ कि मुझे बहुत शौक था, और मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं रहा सच्चे जाफर के साथ, और हाँ उन्होंने काफी मुझे प्रमोट किया इस सिलसिले में कि आप इसमें हिस्सा लीजिए खानी में या सलाम पढ़ने में। तो उन्होंने काफी प्रमोट किया। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था कि आपकी रहनुमाई हुई
इकबाल नदीम साहब की, तो आपने बहुत मुझे प्रमोट किया। तो यही ये वाक़यात हुए हैं जो, और बाकी अब जो मेरा काम है वो मैं कुछ किताबें लिख रहा हूँ। वो किताबें ऐसी हैं जो कि शायद अभी इतना नहीं है हम लोगों को लिखी गई, वो उन लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ। अमीर मुख्तार के बारे में इतना हमें नहीं पता, मिसम तमार के बारे में हमें बहुत कम मालूमात है, तो सब वो चीज़ें मैं जमा करके उसको कोशिश कर रहा हूँ कि उसको इंग्लिश में मैं लिखूँ ताकि उससे फायदा हो। ऐसे और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा पैगाम यहाँ से जाएगा कि लोग पसंद भी करेंगे इस चीज़ को कि ऐसी चीज़ें को प्रमोट होने चाहिए, पता होना चाहिए। हमें हज़रत अबू तालिब के बारे में नहीं मालूम, जो कि मालूमात होना जरूरी है। मैं ही समझता हूँ, जो मैंने कोशिश की है, बारह से मैं रहता हूँ उलमाओं से, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे उलमा को यहाँ लेके आऊँ ताकि उनसे बात करें, लोग पहचाने उनको, सिर्फ हम पुराने उलमा पर तकिया न रखें बल्कि दूसरे उलमा को भी प्रमोट करें। मेरा अपना ये ख्याल था और सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा अपने बहुत ही काबिल एहतराम हमारे इफ्तिखार रिजवी का, जिन्होंने मुझे जो यहाँ तक मुझे लेके आए हैं, वरना मैं तो ख्वाब में भी नहीं था कि मैं कर सकूँ। अनीस भाई, आप प्रोग्राम में आप शामिल रहेंगे तो जिस वक्त मेरी बारी आएगी, इकबाल भाई मैं एक बहुत ही लतीफ नुक्ता अनीस भाई के बारे में आपको बयान करूंगा कि किस तरह प्रोग्राम में जी, और इन्होंने क्योंकि अभी तक कोई नुक्ता बयान ही नहीं किया ना, तो लिहाजा आप इसके बारे में बताइएगा। वो मैं इनके बारे में वो नुक्ता मैं बयान कर दूंगा अनीस भाई के बारे में कि ये किस तरह से प्रोग्राम में शामिल हुए और किस तरह मतलब कि इनको शामिल होने के लिए कितना अरसा लगा। मैं पूरी तफसील बयान करूंगा जिस वक्त मेरी बात होगी जी इंशाल्लाह। और अनीस भाई आप रहिएगा, आप सुनिएगा, आपको बड़ा लुत्फ आएगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, अब दरीचा रहमत खुल रहा है। इस वक्त हमारे साथ इंडिया की एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम निजामत, किताबत, नौखानी, मनकबत खानी और शेर व शायरी के नाम हवाले से बड़ा जाना पहचाना है। हमारे साथ तशरीफ फरमाएं जनाब नवाब साबिर साहब। मैं जनाब नवाब साबिर से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जो गलतियां की हैं जिंदगी में निजामत के दौरान उसको जरा बयान फरमाएं ताकि जरा इस महफिल में थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल पैदा हो जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात जो मेरे सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, यकीनन काबिल एहतराम हैं सब लोग, और आप सबकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि जब जनाब इकबाल हैदर नदीम साहब ने मुझसे डिस्कस की एक हफ्ता पहले कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम करना है जो अपनी गलतियां मतलब हम सबको बताए, तो उस वक्त तो मैंने इनसे हाँ कर दी थी। मैंने कहा हाँ ठीक है करेंगे, लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा यार ये तुमने क्या किया कि अपनी गलती हम सबको इंटरनेशनल लेवल पे अपनी गलती सबको बताएंगे। बहरहाल सही बात। जैसा कि आपने कहा निजामत में तो मुझसे कभी कोई गलती हुई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो एक गलती है 92 की वो मैं आपके सामने सबको बताता हूँ। ये मुंबई का वाकया है, और मुंबई में एक स्टेशन होता है मुलुंड, तो वहां से मुझे जाना था मुगल मस्जिद, वहां शब्बेदारी थी और अय्याम अज़ा का महीना था। तो मैंने ये सोचा कि टिकट लेकर के और ब्रिज से ना जाकर के रेलवे ट्रैक को पार कर। जी मैंने टिकट जेब में रखा और जेब में रखने के बाद जैसे ही मैंने रेलवे ट्रैक को पार किया तो वहां पे सब सिविल ड्रेस में जो थे खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे बुलाया, बोले आप इधर आइए। मैं बोला जी बोलिए। मैंने टिकट निकाला जेब से, मैं कहा सर मेरे पास टिकट है। बोले नहीं हम टिकट नहीं देख रहे आपका, आपके पास टिकट है लेकिन आपने जो रेलवे ट्रैक को पार किया है इसलिए हमने आपको पकड़ा है। तो मैं बोला सर मुझे जाना है मजलिस में। बोले नहीं आप कहीं नहीं जा सकते, आप यकीन जानिए, आप सब लोगों को सच बता रहा हूँ कि सबसे आगे उन्होंने मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दी और हथकड़ी लगाने के साथ कम से कम 30 लोग मेरे पीछे, और वो जाके मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने पेश किया। मुझे इतना अफसोस, इतना गुस्सा मिला कि 2 मिनट के लिए मैं अगर ऊपर से ब्रिज से चला जाता तो शायद ये बात नहीं होती और मेरी शब्बेदारी जो है वहां उन्होंने मुझे ले जाके जेल में डाल दिया। मेरे साथ बहुत सारे लोग
तकरीबन आप यकीन जानिए कि मैं 8 घंटे वहां पर बैठा रहा। जब सुबह हुई और सुबह होने के बाद में फिर वो आए पुलिस वाले, आने के कहा कि चलिए साहब आप मजिस्ट्रेट के पास चलना है, तो यकीन जानिए उस वक्त भी सबसे आगे मैं, मेरे हाथ में जो मेरे पीछे सब, और अल्लाह मेरे कौन से गुनाहों की सजा है। बहरहाल हम गए और जाने के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने सबसे पहले मुझे ही पेश किया। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या किया? मैं बोला सर मैं जल्दी में था, मेरी गलती थी, मैंने जो था रेलवे ट्रैक को पार किया। बोले आपको पता है मुंबई में आपकी गलती कर रहा हूँ? सर मेरी गलती है। तो उस टाइम उन्होंने मेरे ऊपर 60 रुपए का जुर्माना किया और मैंने 60 रुपए दिए। और देने के बाद में शबेदारी करने तो जाना था मुगल मस्जिद, आप सब लोग जानते हैं मरकज है मुंबई का, और मैं सारी रात रहा जेल के अंदर। तो ये इकबाल हैदर नदीर साहब जो है अपनी गलतियां पूछ रहे हैं कि वो सब पूरी दुनिया देख रही है, कायम टीवी को सब माशाल्लाह मशहूर है। तो आज जो राज मतलब हम लोगों के छुपे हैं वो इकबाल नदीम साहब जो है वो सबके सामने। मैंने अपना भी कोई राज छुपाया नहीं है, मैंने भी अपनी गलती बताई है, बल्कि मुझे एक और अपनी गलती याद आ गई। अगर आप मुझे याद दें तो मैं बयान करूं। बिल्कुल 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 सुनने के लिए बैठे हुए हम लोग। और नवाब साबिर साहब के लिए मेरे पास कुछ सवालात हैं, मैं अभी पूछूंगा। इकबाल भाई आप जरा अपनी गलती बताइए। जी इकबाल भाई। अभी हाल ही में मैंने एक प्रोग्राम किया 21 रमजान को जी, शब गिरिया शहीद कूफा, महफिल मुसालमा था। उसमें मैंने जनाब अली खान साहब को जब इनवाइट किया तो असल में मेरे पास वक्त बहुत कम था और मुझे रात को लाइव प्रोग्राम करना था। मैं जुलूस से आया, आके मैं थका हुआ था, रोजे की हालत भी थी मेरी। बस अफ्तार करने के बाद मैंने जल्दी से फेसबुक को निकाली और उनका मैंने बायोडाटा देखना शुरू कर दिया। पहली नज़र इनके पहले ही पेज पे पड़ी तो बहुत खूबसूरत शेर मुझे नजर आया। मैंने कहा यार ये हवाला बड़ा अच्छा है इनके तारुफ के लिए। मैंने वो शेर नोट किया और जब उनका मैंने तारुफ कराया और मैंने कहा इस शेर के खालिक जनाब अली खान साहब अपना कलाम पेश करेंगे। अली खान साहब ने कहा भाई मैं यहाँ पर आपकी तस्दीक कर दूँ, ये शेर मेरा नहीं है, ये आरिफ साहब का शेर है। मैंने कहा ये फेसबुक पर है तो मेरी फेसबुक पर, मगर मैंने उसमें नाम लिखा है आरिफ इमाम। मैंने कहा मेरी नजर से नहीं गुजरा, मैं तो समझा आप ही के शेर है। इसके हवाले से मेरे मौलाना अली के मैंने ख्वाब भी कोट किया उस पर और फिर उनका तारुफ करा के उनको मैंने बुला भी लिया। तो ये भी हाल ही मिस्टेक हुई मुझसे, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये और हो जाती है। हाँ, इससे प्रोग्राम की बात। अच्छा जी नवाब साबिर साहब, एक तो पहला सवाल लोगों के जहनों में आपके बारे में जो आता है ना सफीर आज़ा, एक तो ये सवाल आता है कि ये टाइटल आपको मतलब किस तरह मिला। और दूसरी चीज ये कि वो जो आप गेटअप चेंज करके आते हैं तो वो क्या सोचकर अपने गेटअप को आप चेंज करते हैं? अक्सर मैंने देखा है कि आपका गेटअप बड़ा चेंज होता है। कौन सा गेटअप की बात कर रहे हैं आप? मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप मुख्तलिफ गेटअप से आप आते हैं। जैसे आप जब इराक जाते हैं, करबला मोहल्ला उस तरफ जहाँ जाते हैं तो आपके मुख्तलिफ मुझे गेटअप नजर आते हैं चेंज। और ये सफीर आज़ा आपको टाइटल किस तरह से आप? एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। गेटअप की बात तो ये है कि बचपन से जब मेरी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल होगी तो मेरी वालदा चूंकि खुद एक जाकिरा थी और उनकी उंगली पकड़ करके मैंने मजलिस मातम को शुरू किया। तो मेरी वालदा की अक्सर कोशिश ये रहती थी कि मैं पढ़ूं, नोहे पढ़ूं, मैं मरसिए पढ़ूं मैं, और मैं जहां तक हो सके मुझसे मैं खिदमत अहले बैत करूं, क्योंकि मेरी वालदा खुद मतलब एक जाकिरा थी। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद में उन्होंने मुझे उस मंजिल पे लाके खड़ा किया कि मैं नोहा खानी भी करने लगा, मैं सोस खानी भी करने लगा, मैं मनखबत खानी भी करने लगा। और उसके बाद में 92 के बाद में जब मैंने होश संभाला तो एक ग्वालियर के मेरे अहले सुन्नत एक दोस्त थे मेरे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब आप पढ़ते हो तो आप एक काम करो, आप शायरी शुरू कर दो। तो 92 के बाद वो मनोवर साहब उनका नाम था, ग्वालियर मध्य प्रदेश इंडिया के रहने वाले, तो उनके कहने से मैंने शायरी लिखना शुरू कर दी। तो उसके बाद में आपका एक सवाल कि आपको सफीर आज़ा जो आपने सवाल किया है, सफीर आज़ा का एक्चुअली मेरा खिदमत अहले बैत में हिंदुस्तान के अंदर इतना ज्यादा वो है कि मैं, आप यकीन जानिए कि अय्याम अज़ा में कई घंटे तक नोहा खानी और कई घंटे भूखा रहना और मजलिस मातम, ये समझ लीजिए कि अगर 10 किलोमीटर पर है तो वहां चले जाना, 20 किलोमीटर है तो वहां चले जाना। गरज ये है कि लोगों ने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप थोड़ा सा खाना पीना भी शुरू किया करो। तो उसके बाद में जब मैं इराक में गया, ईरान में गया, सऊदी अरब में गया और मस्कत में गया, आपके पाकिस्तान में आया,
اور میں نے باقاعدہ نوحے خوانی کی. تو وہاں سے انڈیا میں جو میری انجمن ہے وہاں سے لوگ جو ہے سفیر اعزا کا مجھے کہنے لگے, اور باقاعدہ میرے پاس جو میرا فوٹو ہے وہ اس میں ایکسٹرا آرڈنری عزاداری کا اس میں لکھا ہوا ہے, وہی میرا ثبوت آپ کے سامنے ہے جو میرا ڈسپلے پہ آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسرا آپ نے ایک سوال کیا, گیٹ اپ جو ہے چینج ہو جاتا ہے کربلا جاتے ہیں. تو آپ تو مجھ سے خود بہتر جانتے ہیں کہ جب انسان اس جگہ پہ قدم رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا گیٹ اپ آٹومیٹک خود چینج ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. جی بہت شکریہ. اور جہاں تک یہ باتیں ہوئی, میں آپ کو اپنی زندگی کے بہت سارے واقعے کے لیکن 2 واقعے آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں. اقبال ندیم حیدر صاحب بھی سنیں گے, اور جناب ذوالفقار صاحب, میسم صاحب, عباس صاحب, اور جتنے بھی معزز مجھ سے قابل ہیں سب لوگ سنیں گے. میں جب 2006 غالباً 7 میں جب میں ایران گیا تو مجھ سے فارسی نہیں آتی ہے, ماشاءاللہ سے عربی مجھ سے بہت اچھی آتی ہے بولنی. تو میں امام رضا کے حرم میں جو تھا تقریباً 2 سے 3 گھنٹہ میں پریشان رہا. مجھے جو باب رضا ہے وہاں کا راستہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو میں بڑا پریشان رہا. اور میں جس ایرانی سے پوچھوں وہ فارسی میں بات کرے, فارسی میری سمجھ میں آئے نہیں. تو پھر میں امام رضا کی زری کے اندر گیا, اور جانے کے بعد میں میرے ذہن میں امام رضا کے حوالے سے کچھ اشعار آنے لگے. افتخار بھائی آپ یقین جانیے, خدا شاہد ہے کہ میرے پاس پین نہیں تھا, تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ اس وقت اگر میرے پاس پین ہوتا تو میں کچھ یہاں اشعار لکھتا. آپ یقین جانے اسی وقت ایک پین گرا, اور اس پین کو میں نے اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد میں نے امام رضا علیہ السلام کے اشعار لکھنا شروع کیا. سلام ہو میرا تم پر میرے امام رضا, غریب آ گیا در پر میرے امام رضا. اور اس کے آگے کے اشعار ہے کہ نواب لوٹ کے آیا ضرور مشرق سے, جسم و جان وہیں پر میرے امام رضا. ایک یہ. اور 2018 میں جب میں کربلا معلیٰ میں گیا, افتخار صاحب, عباس صاحب اور شاہ جی جتنے بھی مومنین یہاں پر ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً آپ یقین جانیے کہ 8 گھنٹے لگے مجھے مولا عباس کی زری پہ جانے کے لیے. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں, مجھے کیسے پتا چلے کہ میری زیارت قبول ہو. یہ میرے ذہن میں امام مولا عباس کی زری پہ جب میں حاضری دینے کے لیے گیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے. کیونکہ مولا مجھے آپ سے کچھ نہ کچھ تبرک چاہیے. اور میں آپ یقین جانی زاروں قطع رونے لگا, اور جا کے مولا عباس کی زری کے پیچھے دیوار سے جا کے کھڑا ہو گیا. لوگوں نے بہت دھکے دیے, کرتا بھی میرا پھٹا, آج بھی کرتا میرے پاس موجود ہے. آپ یقین جانیے بس میرے ذہن میں آیا کہ مجھے آپ سے کچھ تبرک چاہیے. آپ یقین جانیے کہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا, اور آنے کے بعد میں اس نے مجھے چاندی کا کڑا دیا, بولے آپ کو گفٹ ہے. کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے جو سفیر اعزا کی بات کہی وہ میں جو مین چیز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عطا ہی عطا ہے آپ کو, مولا کی عطا ہی عطا ہے. اب میں جو آپ کو جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو 2019 میں پھر زیارت کے لیے میں نے کوشش کی, تو وہاں پر 5 سیٹیں تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ 5 سیٹیں کر لو گے تو آپ زیارت کے لیے چلے جاؤ گے. آپ یقین جانیے وہ 5 سیٹیں ہوئی نہیں, اور میں کربلا کی زیارت سے محروم رہا. لیکن اسی رات میں اتنا رویا, میں آپ کو بتاؤں افتخار بھائی کتنا رویا میں آپ کو. میرے بچے اور میری زوجہ کہنے لگی نہیں آپ کیوں اتنا پریشان ہو, بولے نہیں مجھے کربلا جانا ہے. میرے دل میں تڑپ تھی اندر سے کہ مجھے کربلا جانا ہے. خیر کوئی بات نہیں, 40 کا دن ہے. میرا بھائی الحمدللہ مسقط میں ہے, وہ ہر سال جاتا ہے فیملی کے ساتھ. تو جس قافلے میں تھا اس میں پاکستان کے تقریباً 18 یا 19 لوگ تھے وتھ فیملی, جس قافلے میں مسقط سے جوائن کیا تھا. آپ یقین جانیے 40 کی رات میں وہ لوگ میرے بھائی کے پاس گئے, اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی حرمین میں جو ہے نوحہ خوانی کر رہا ہے. تو میرے بھائی نے ان سے کہا کہ نہیں میرا بھائی تو انڈیا میں ہے. بولے نہیں کیسی بات کر رہے ہو, چلو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. وہ حرمین میں جا کے دیکھیے آپ, وہاں پہ وہ ہے نوحہ خوانی کر رہا ہے. وہی کالا کپڑا ہے, کالا شال ازا ہے. آپ یقین جانیے ٹھیک 4 بجے میرے بھائی نے کال کیا, وہاں سے عراق سے کال کیا, مجھ سے کہا کہ آپ تو کربلا میں ہیں. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار میری کیوں مذاق بنا رہا ہے بھائی, میں کربلا میں, کہا میں تو انڈیا میں ہوں, میں آنا چاہتا تھا. بولے نہیں, جو قافلہ پاکستان سے آپ کے پچھلے سال ساتھ تھا
उसी काफिले ने आपको बैनुल हरमैन में नुहाखानी करते हुए देखा। इफ्तिखार भाई ये बहुत सारे मौला के क्या बात है नवाब साहब, कहेंगे मौला की मौला अब्बास को हाजिर नाजिर जान के आपको कह रहा हूँ कि मैंने वाक़या करबला को ख्वाब में देखा है, और देखने के बाद में आप ये जानिए कि मुझे होश नहीं था। देखा किसी को नहीं कि मैदान करबला में जो खून और जो नेजा, जो तलवार, जो तीर, जो तबर मैंने देखे, आप यकीन जानिए कि मैं आपको बता नहीं सकता मेरी क्या करती है। और एक आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुझे कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता, मैं झूठ बोलूं तो मौला अब्बास की मार पड़े, पूरी दुनिया मुझे आज देख रही है। ये इकबाल साहब का बहुत बड़ा वो है कि जो इस प्रोग्राम को उन्होंने किया, और ये बातें आज मेरे लब पर आई। मैं आपको क्या क्या बातें बताऊंगा, आपने जो सफीर अल्लाह का नाम लिया है, मैं इस वजह से मेरा ये मतलब 2 साल पहले मैं ख्वाब में देखता हूँ एक मिस्र तरह इंडिया में निकला था बीबी सकीना के हवाले से, क्यों तुझ पे ना रोए तेरी तकदीर सकीना। तो मैंने उनसे कहा था कि यार ये मिसरा ठीक नहीं है, इस मिसरे को आप दुरुस्त करें। आप यकीन जानिए उस मिसरे पे मैंने नोहा लिखा, और नोहा लिखने के बाद में फजर की अजान के टाइम पे मैं ख्वाब देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा हॉल है और वहां पे एक कच्ची कब्र है। उस कब्र से जैसे फुआर निकलती है, मिट्टी से पानी की फुआर निकलती है, तो मिट्टी से पानी की फुआर निकल रही है। और मैं जब उसके अंदर गया तो मैंने कम से कम 200 से 250 औरतें देखी जो बिल्कुल पर्दे में थी, उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहां पे मैंने ये पूछा कि ये किसकी कब्र है, तो आप यकीन जानिए वहां से आवाज आई कि ये बीबी सकीना की कब्र है। और आप यकीन करेंगे मैंने अपना सर उस जो पिलर था उसमें मारा, और सर मारने के बाद मैं रोया, और वो जो नोहा मिस्र पे मैंने लिखा था वो नोहा मैंने वहां पढ़ा, पूरा नोहा। सज्जाद का नोहा था ये हमशीर सकीना, अब पैरों में चुभती है ये जंजीर सकीना, उसका ये मिसरा था। अगले दिन फिर अपने भाई की ससुराल में इसको आपको मैंने सुनाया। इफ्तिखार भाई खुदा की कसम, बस मौला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता जो रात में अलम, ज़ियारत, जुलजना, ताबूत, जंजीर का मातम, मनखबर, कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता जो रात में ख्वाब में नहीं दिखाई देता। क्या बात है मौला की। आज ही की मिसाल ले ले, ईद का दिन है, ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तमाम गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जो आपकी गुफ्तगू दिल से, अपने कल्ब से आपने बयान की है, तो चाहे वो ईद हो, त्योहार हो, शादी हो या मौत का समा हो, तो ये तो जिक्र हमारे रूह से जुदा नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने कहा कि ईद का दिन है, लेकिन हमारी ईद की जो है वो गम के साथ शुरू है। बस वो सफीर रज़ा का जो इफ्तिखार भाई ने कहा, तो मेरे दिल से जो है बहुत सारे माशाल्लाह भाई। आपको आता है मौला की, और आप मौला के खास ज़ाहिर के चाहने वालों में आपका शुमार होता है, यकीनन खिदमत है आपकी। जी इकबाल भाई। बिल्कुल बेशक, बहुत शुक्रिया सबीर भाई, आपने हमें काफी वक्त दिया। हंगामा आलम में बहुत शोर है, लेकिन मैंने तो फकत आपकी आवाज सुनी है। ये हमारी ये ऐसे सद इफ्तिखार है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम नौखानी, मनखबत खानी और निजामत के हवाले से बड़ा मुतबर है। आपके बेशुमार प्रोग्राम कायम टीवी से नशर हो चुके हैं, जिसमें असरार रमजान, ईद कायम आजकल बड़ा मकबूल हो रहा है। जनाब इफ्तिखार मेहदी रिजवी साहब हमारे दरमियान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो खुलकर बात करें। इकबाल भाई बिल्कुल, मैं तो देखिए मैं वैसे भी परहेजगारी का कायल नहीं हूँ, मैं परहेज बिल्कुल भी नहीं करता किसी बात के अंदर। तो मेरे बहुत से मेहमान गिरामी और मेरे ज़ाहिर के सब हम यहाँ पर देखें, किसी ने कहा कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा और ये कुछ नहीं होता है, इंसान की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है। तो हम तो जुल्फकार भाई जो हमारे सामने बैठे, मर्सिया खां, हम इनको जुल्फकार भाई कहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि ये मेरी ज़ौजा से पूछते हैं कि मतलब मैं तुमको क्या कहूँ, इफ्तिखार तुम मुझे भाई कहते हैं। तो ये रेहान भाई को जिंदगी भर हम रेहान भाई कहते रहे, अब्बास भाई को आप। तो ये जाहिर है कि हम तो परहेजगारी के कायल ही नहीं है, तमाम मामलात को ऐसे ही लेके चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं बताता चलूं अपने बारे में। जाहिर है कि इतने सीनियर्स भी मेरे सामने बैठे हुए, इकबाल भाई, अब्बास भाई और जुल्फकार भाई।
जितने भी हमारे मेजबान कायम टीवी के इस वक्त मौजूद हैं, बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं। मीसम ने बेहतरीन प्रोग्राम करते करते कहाँ से कहाँ तक सफर इनका पहुंच चुका है। इसी तरह से जिब्रान जो है वो भी माशाल्लाह से बेहतरीन प्रोग्राम नजर बलागा के हवाले से अनीस भाई ने अभी शुरू किया है। तो इकबाल भाई थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी, जाहिर है कि हम लोग ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में हम सबके इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों के इंटरव्यू कोई करते ही नहीं कि जो कि दिल की बातें बता सके। तो आज आपने मौका दे दिया है, तो फिर जाहिर है कि मैं तो खुल के तमाम बात करूंगा और हर बात को बयान करूंगा यहाँ पे। निजामत जाहिर है कि नौखानी से जिंदगी इब्तिदा हुआ। अम्मी ने उंगली पकड़ के एहसन जैदी साहब एक शायर अहले बैत होते हैं कराची में, आपको पता होगा। एहसन जैदी साहब के हवाले मुझे किया था। उनका शेर है, नारे हैदरी लगाते हैं जी, हम तो अपना नसब बताते हैं, डाली यूं लबों पे रहता है, जिसका खाते हैं उसका लगाते हैं। क्या कहने अम्मी ने मुझे जी एहसन जैदी साहब के हवाले, जो कि मौलाना तौकीर हुसैन जैदी साहब के भतीजे भी हैं, वो उनके हवाले कर दिया था। और एहसन भाई ने मुझे कांधे पर बिठाकर नौखानी कराई है। मेरे लिए बाइस से मतलब फख्र भी है ये बात। और वहां से इब्तिदा हुई, मुख्तलिफ शब्बेदारियों में अंजुमन में शामिल रहा। कारवान मोहम्मद का हयात साहिब व्यास, सफर चलता रहा, कनाडा आ गए, फिर पाकिस्तान में। असल में हमारे होता ये है कि जब भी अंजुमन की शब्बेदारी होती है, अब्बास भाई इससे अच्छी तरह वाकिफ है और इकबाल भाई आप भी, कि उसमें जो साहिब ब्याज होता है उससे ही निजामत करवाते हैं। तो वो सिलसिला वहीं से शुरू हो गया था। बचपन से ही बच्चों की अंजुमन थी, और उससे जब बड़ी अंजुमनें पढ़ने के लिए आया करती थी तो मेरे हाथ में माइक होता था और मैं अंजुमनों को बुलाने के फराइज वहीं से मैंने शुरू किए, और निजामत एक तरह से समझे कि वहीं से शुरू की। फिर उसके अलावा कि कॉलेज के कुछ प्रोग्राम्स के अंदर निजामत का मौका भी मिला, लेकिन मैं इंटर कॉलेज के नातिया मुकाबले के अंदर फर्स्ट प्राइज होल्डर भी रहा हूँ अपने कॉलेज में, और जिसकी बिना पर मैं रेडियो पाकिस्तान तक मेरी रसाई हुई। और रेडियो पाकिस्तान के बज़्म तलबा प्रोग्राम हुआ करता था किसी जमाने में, उसमें भी बाकर जैदी के साथ, रजी जो बाकर जैदी को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ भी मैंने 73 से लेकर 84 तक बंदना प्रोग्राम किए जी। बच्चों के दुनिया में भी प्रोग्राम किया है, वर्ल्ड सर्विस से भी किए थे मैंने जी। वहीं से मैंने थोड़ा बहुत सीखा था। आप तो इकबाल भाई आपकी तो जवाब नहीं, हम तो आपको मतलब आपके सारे प्रोग्राम, मुख्तलिफ महफिलों के प्रोग्राम और अदब के जो प्रोग्राम होते थे वो सब चीजें आपके देखते रहे अपने अब्बास भाई के। तो अब कायम टीवी के हवाले से, जिस वक्त मैं कनाडा आया हूँ तो शहरियार ने कायम टीवी जब शुरू हुआ है तो मेरे लिए बड़ी सआदत है कि कायम टीवी का पहला नाज़िम मैं ही था, कि जब यहाँ से इब्तिदा किया तो सबसे पहले शहरियार ने मुझसे ही कहा, पहले ये लोग किसी और जगह प्रोग्राम करते थे, वो कायम टीवी का नाम नहीं था, फिर बाद में इसका नाम तजवीज़ किया गया और कायम टीवी को इन्होंने कायम किया। तो सबसे पहले निजामत मुझसे ही करवाई गई। इसमें ईद कायम के नाम से प्रोग्राम हमने किया और लाइव प्रोग्राम था ये। अच्छा, मेरे लिए मसला ये रहा कि शहरियार ने हमेशा मुझसे जितने भी प्रोग्राम कराए हैं वो लाइव प्रोग्राम करिए, कि भाई अब लाइव प्रोग्राम करे इफ्तिखार भाई, लाइव प्रोग्राम करे। चाहे जितने रिकॉर्डेड प्रोग्राम तो मैंने शायद ही कोई किया हो, लेकिन देखिए लाइव प्रोग्राम ज्यादातर मैं करता रहा। सलाम रमजान हो या महजर नामे के हवाले से प्रोग्राम था मुहर्रम का, और सलाम या इमाम के हवाले से इस साल जो प्रोग्राम था, लास्ट ईयर हमने डॉक्टर नवीद सैयद के साथ, वसीम भाई भी हमारे साथ होते थे, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन प्रोग्राम। रमजान के प्रोग्राम, नौहा खानों के मुख्तलिफ इंटरव्यूज। सबसे पहला इंटरव्यू जो हमने किया था शहरियार के दफ्तर में, जब कायम टीवी कायम हुआ उस जमाने में, लाइव इंटरव्यू किया था रिजवान जैदी का, मैंने इंटरव्यू किया था उसको, और बिल्कुल ही सामने। अच्छा, टीवी के हवाले से तो मेरा तजुर्बा आप कह सकते हैं कि पहले ही तजुर्बा था, और बड़े घबराहट भी हो रही थी कि किस तरीके से रिजवान का मैं फिल बदी इंटरव्यू करूं, और वो उस पे फोन कॉल्स भी आ रही थी, और फोन कॉल्स पे रिजवान कलाम भी सुना रहे थे, और शहरियार के ऑफिस में सामने शहरियार ने खुद ही कैमरा लगाया हुआ था और बिरयानी का इंतजाम कर दिया था कि उसके बाद हम लोग बिरयानी खा सकते। तो खुशबू आ रही होगी। ये फिक्र भी थी कि जल्दी प्रोग्राम खत्म करें ताकि कम से कम बिरयानी तो खाएं। अच्छा, उसके अलावा एक नहजुल बलागा का जो प्रोग्राम इस वक्त जिब्रान जो कर रहे हैं, ये प्रोग्राम इमाम हैदर साहब के साथ मैं ही कर रहा था, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से ज़ाहिर है मैं एक इमाम बारगा का प्रोग्राम डायरेक्टर भी हूँ, बाबुल बनी हाशिम सोसाइटी का, वो भी जिम्मेदारी है, फिर घर की जिम्मेदारी, जॉब। तो फिर मैंने जिब्रान से कहा कि ये प्रोग्राम तुम करो। जिब्रान ने कहा इफ्तिखार भाई मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं बैकअप पे बैठा हूँ। जिब्रान प्रोग्राम करते थे,
میں واٹس ایپ پہ انہیں میسیجز کر کر کے ان کو مطلب الفاظ دیا کرتا تھا, یہاں پر یہ جملہ کہہ دو, یہاں پہ یہ کہہ دو, یہاں پہ. اب ماشاءاللہ سے جبران کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے علاوہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کے انتقال پر جو پروگرام نیر بھائی نے کیا تھا, ان کے ساتھ ایز کو میزبان کی حیثیت سے میں رہا ہوں. عباس بھائی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تھے. اس کے علاوہ علامہ طالب جوہری کے انتقال پر پورا پروگرام مجھے ہی کرنا پڑا, لائیو پروگرام تھا وہ بھی. اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے حوالے سے پروگرام کینیڈا سے ہوا, وہ بھی لائیو مجھے ہی کرنا پڑا تھا. نیر بھائی کے انتقال پر ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا تھا. نیر بھائی ہمارے ناظرین, میں چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے بھی ایک سورہ فاتحہ. جی بالکل, نیر بھائی کو یاد رکھا جائے گا. اور ان کی پہلی برسی پر بھی اسی طرح سے. پینڈیمک کے درمیان جب پینڈیمک کا زمانہ آیا ہے تو اس زمانے میں بہت پریشانی مومنین کو امام بارگاہ تک پہنچنے میں ہوئی ہے. تو اس زمانے میں ہمارے ٹی وی چینل نے بہت کردار ادا کیا, جس میں قائم ٹی وی کا اپنا بہت بڑا اس میں کردار رہا ہے, بہت بڑا کردار تھا. بالکل. اور ہم دونوں بالکل ہی یہاں کے جو پروگرام ہے جشن کے حوالے سے, میلاد کے حوالے سے, ان سارے پروگراموں کے اندر ہم لوگ مستقل, یقین کیجئے کہ سونے کا وقت نہیں ملتا تھا کہ کس طرح مینج کریں. امریکہ کا پروگرام ہوا کرتا تھا ڈاکٹر منظور رضوی صاحب کا, 5 گھنٹے کے پروگرام کی نظامت میں نے کی, اس کی مستقل نظامت میں کرتا رہا, جس میں بہت ہی جیت شورا اکرام ہندوستان سے اور پاکستان سے اور امریکہ اور کینیڈا سے شامل رہے. تو وہ بھی سعادت مجھے حاصل رہی. اب جہاں تک غلطی کی بات ہے تو دیکھیں, غلطی تو ہوتی ہے بالکل, اور مجھ سے بھی غلطی پروگرام کے درمیان ہوئی ہے بہت زیادہ. ایک تو الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے تو رضی جعفری یہاں پر ایک شاعر ہوتے ہیں, فوراً ہی ٹیکسٹ میسج مجھے کر دیتے ہیں کہ بھائی تم نے یہاں پر غلط الفاظ ادا کیے, یہ الفاظ یہ آپ مطلب کہ استعمال کریں گے. تو پھر میں اس کی فوراً ہی اصلاح کر دیتا, کیونکہ میرے پروگرام لائیو ہوتے تھے. تو لائیو پروگرام کے اندر جو ہے وہ میسج بھی آ رہا ہے, پھر اس کو میں فوراً. دوسرا ایک واقعہ ہے, جب میں نظامت کر رہا تھا کسی میلاد کی, تو اس کا ایک واقعہ وہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. نظامت کے درمیان ایک بچہ آ کر بیٹھ گیا, اور مطلب میں نام کسی اور کا پکارنے جا رہا تھا, چھوٹا سا بچہ مائک کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اب دیکھیے, ہم جو ناظمین ہیں, اقبال بھائی آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, عباس بھائی آپ سے سیکھتے ہیں, ہمیں ادب آداب تہذیب بھی ہم سیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ بہت بڑی ادب آداب تہذیب ہمارے اندر نہیں ہے, تو ہم ایک نظم کرنا, ناظم کا کام ہے چیزوں کو نظم کرنا. تو وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر تکبر ہو یا ہمارے اندر سافٹ لہجہ ہمارا نہیں ہو تو بڑے مسائل پیدا ہو. بچہ آ کے بیٹھ گیا, اب بچے نے منقبت پڑھنی شروع کر دی. جی اب پروگرام لیٹ ہو رہا ہے, بچہ منقبت پڑھ رہا ہے, اس نے ایک کے بعد دوسری سٹارٹ کی. میں نے کہا اس بچے کو میں ہٹاؤں کیسے, ڈانٹنا ہے نہیں, کیمرے بھی سامنے, پھر ڈانٹنا ہمارے اس پہ ادب آداب میں نہیں آتا ہے. میں نے بچے کے کان میں خاموشی سے ہلکے سے کہا, بیٹا باہر کیک تقسیم ہو رہا ہے. اس بچے نے وہی منقبت چھوڑ کے باہر چلا گیا, بھاگ گیا. اور یہاں سے پھر میں نے دوسرے اور سلسلہ شروع کیا. اور جہاں اچھا دوسرا واقعہ جو میں لائیو پروگرام کر رہا تھا, اس درمیان میں بہت ہی معروف مولانا تھے یہاں کے کینیڈا کے, جن کے ساتھ میرا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا, سلام دعا. دوران پروگرام میں ان کا نام بھول گیا کہ وہ قبلہ فرت موسوی صاحب پروگرام میں تھے, نام بھول گیا. میں نے پورا پروگرام ختم کر دیا قبلہ قبلہ کہہ کر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. پروگرام کے اختتام پہ فرت موسوی صاحب مجھ سے کہہ رہے, ارے بھیا آپ کو, وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں ہندوستان سے, بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا, آپ ہمارا نام ہی بھول گئے. ہم سوچ رہے اب لیں گے نام, اب لیں گے نام, یہ تو پروگرام اختتام ہو گیا, آپ نے قبلہ قبلہ کر کے ہمارا پروگرام. اب یہ اس طرح کی, اب سارے لائیو پروگرام جا رہا ہے, اس درمیان میں ان سے نام نہیں پوچھ سکتا تھا. اچھا ایک اور واقعہ میرے ساتھ جو ہوا, استغفار صاحب اس بچے نے بھی آپ سے کہا نہیں کہ تبلک نہیں بٹ رہا باہر, نہیں باہر بچہ چلا گیا تو وہ کھیلنا شروع کر دیا ہوگا, اس سے یقیناً واپس نہیں آیا وہ بچہ. تو وہ میری بچت ہو گئی, ورنہ پھر وہ دوبارہ آ کے بچہ بیٹھ جاتا. وہ اکثر یہاں پہ بچہ ہے, وہ کرتا ہے حرکتیں, اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے. تو اچھا ایک اور واقعہ دیکھیے, شہریار بھائی ہمارے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے مجھ سے کام لیتے ہیں اور بڑے مسائل میں پھنسا دیتے ہیں مجھے. پروگرام کرنا تھا, لائیو پروگرام تھا, اور مہمانان گرامی نہیں آئے تھے, اور پروگرام کا وقت جا رہا تھا, اور مولانا صاحب بھی تشریف نہیں لائے تھے. شہریار نے کہا, مجھے میسج کیا, افتخار بھائی سنبھال لے اس کو کسی بھی طریقے سے, ورنہ بڑا مسئلہ ہوگا, بڑی بے عزتی ہوگی. پروگرام لائیو جا رہا ہے اور لائیو آن ایئر ہو چکا ہے. تو میں نے کہا شہریار, مطلب میں نے اس کو میسج کیا, شہریار مولانا نہیں آئے, مطلب میں خود تو مولانا بننے سے رہا, ظاہر جو مولانا سے آپ کو گفتگو کرنی ہے تو مولانا سے ہی کرنی ہے نا.
تو خود تو میں بولا کہہ رہا نہیں افتخار ہے مجھے کچھ نہیں پتا. میں نے فوراً امام زمانہ کے حوالے سے بک سامنے تھی نکالی اور میں نے امام زمانہ کے حوالے سے پوری گفتگو شروع کر دی. پروگرام ختم ہو گیا. منقبت خان تھے میرے ساتھ ایک, ان سے میں نے پڑھوایا تھا. ناصر آغا ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے. میں نے جی کراچی سے ان سے ایک منقبت پڑھوائی, پھر ایک اور. لیکن امام زمانہ کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے مولانا نہیں آئے. وہ پروگرام پھر اختتام کو اسی طرح سے میں نے پہنچا دیا. اچھا جہاں تک انیس بھائی کا, ہاں بالکل اقبال بھائی, سب دیکھیں یہ فی البدی کچھ کام ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں, ناظم کرنے پڑ جاتے ہیں. جی وہ ناظم کو کرنے پڑ جاتے ہیں. اور یہ یقین کیجئے کہ میں دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ ندیم نقوی میرے قریبی دوستوں میں سے بھی ہے اور ہم جعفر یار میں ایک ساتھ رہے ہیں. وہ غلامان علمدار کے نوح خان تھے اور ہم سے سینئر تھے. میں کاروان علومات کا نوح خان, تو کافی ان سے بھی رہا ہے ہمارا. لیکن سیکھا آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ فی البدی کام کرنے کا جو ہے نا, میں دیکھتا ہوں آپ کے پروگرام بھی دیکھتا ہوں, عباس بھائی کے بھی دیکھتا ہوں. انیس بھائی کا واقعہ میں بیان کرتا چلوں, اس کے بعد سے میں اپنی بات کے اختتام پہ پہنچاؤں. انیس بھائی کا مسئلہ یہ تھا کہ میں اسرار رمضان پروگرام جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, ہر سال رمضان میں کرتا تھا مختلف علماء اکرام, اور اس میں لائیو کالز آتی تھی. اب امریکہ سے ایک کال آئے اور گمنام سی, اس میں ایک صاحب بولے کہ بھائی مجھے سوال کرنا ہے مولانا صاحب سے, میں جانتا بھی نہیں کہ کون صاحب ہے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے, کال آ رہی ہے مولانا کی طرف فارورڈ کر دوں. سوال کرتے رہے, کرتے کرتے پھر میری ان سے میں نے پھر کچھ کالیں کاٹی بھی ان کی, کیونکہ ظاہر ہے پروگرام کو دورانیہ ہمیں بڑے مسائل ہوتے ہیں, لے کر چلنا پڑتا ہے. پروگرام کے بعد نیکسٹ ایئر پھر ان کالیں آتی رہی. میں نے کہا یہ کون ہے جو کہ مجھے ہر پروگرام میں کال کرتے ہیں, یہ مطلب بہت زیادہ ہی ہمارے جو ہے نا کوئی مداح ہے, پروگرام کو بہت دیکھتے ہیں. میں نے ان کو فون کیا, کہ لے بھائی میں تو پروگرام میں بڑا دلچسپی رکھتا ہوں اور ایسے ایسے ہے, موقع نہیں ملا. اس سال ایسا ہوا کہ میں نے ایک پروگرام کیا, سلام رمضان کا پروگرام میں ہی کرتا ہوں ہر سال ڈاکٹر نوید سید کے ساتھ. مختلف علماء کرام کی میں پوری لسٹ بناتا ہوں, ترتیب دیتا ہوں کہ کون کون اس پروگرام میں آئے گا. اس سال ہوا یہ کہ بدقسمتی سے کہ میری جاب کی ٹائمنگ ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میں ایک ہی پروگرام کر سکا اور وہ پروگرام میں نہیں کر سکا. تو اب شہریان نے کہا, دانش نے کہا کہ بھائی افتخار بھائی کچھ مینج کریں. تو پھر امداد بھائی سے, یہ وسیم بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے, ان سے, اور انیس بھائی سے میں نے کہا انیس بھائی پروگرام لے کر چلیں. ارے میں کیسے کر سکتا ہوں, میں نے کبھی نہیں کیا افتخار بھائی. میں نے کہا اچھا میں بیک اپ پر ہوں, آپ پروگرام کریں. پھر انیس بھائی نے ہماری عزت رکھی اور اس پروگرام کو لے کر چلے. اور پھر میں نے ان سے پرسوں فون پر کہا کہ انیس بھائی آپ قائم ٹی وی کے قبیلے میں شامل ہو چکے ہیں, آپ ہمارے ناظرین کے قبیلے میں آ چکے ہیں, اب تیاری کریں. بس یہ واقعات جو جی, بلکہ عید کی مبارکباد آپ سب کو. اور اقبال بھائی اتنا بہترین پروگرام کرنے پر ایک تو آپ کو میں بہت دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے دل کی سر, آپ لوگوں نے موقع دیا کہ آپ سے بات چیت کی, اور ہمارے ناظرین اس وقت سب کو بڑے انتماک سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اور یقین اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آئے گا. جی انشاءاللہ. تیری آواز کہیں سے آئی, یوں تیری آواز کہیں سے آئی جیسے پربت کا جگر چیر کے جڑ نہ پھوٹے. ایک ایسی آواز جو آپ اکثر قائم ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. بدلتے حالات پر ایک نظر کرتے ہیں. آئیے آپ کی ہم ملاقات کراتے ہیں وسیم نقوی صاحب سے, جنہوں نے ہمارے ساتھ کینیڈا سے جوائن کیا ہے. وسیم بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک مرتبہ پھر اپنے چمکتے دمکتے ستاروں کو اور جتنے قائم ٹیلی ویژن دیکھنے والے دنیا میں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں کو عید کی بہت بات. آپ لوگوں کو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ایسی 50,000 عیدیں ہم تمام لوگوں کو اسی طرح اقبال بھائی بہت شکریہ اس ناچیز کو آپ نے اتنے قابل اور اتنے شعرا اور اتنے ادبی لوگوں میں آپ نے انوائٹ کیا, جس کا کہ میں مستحق نہیں ہوں, چونکہ وسیم بھائی آپ کے جو پروگرام لوگ دیکھتے ہیں وہ یقیناً ادبی بھی ہوتے ہیں, بڑے معلوماتی بھی ہوتے ہیں, اور آپ جس طرح زیارتوں کی پہ جا کر آپ زیارت کراتے ہیں مومنین کو نا, وہ بڑا مطلب قابل تعریف کام ہے. جی بہت شکریہ. اصل میں میرا تعلق تھا یہاں کینیڈا میں. میں 2015 سے ریڈیو سے میں منسلک تھا, چین ریڈیو پہ, جہاں ہمارا پولیٹیکل شو ہوتا تھا. اور پولیٹیکل شو صرف پاکستان کی حد تک نہیں تھا, پورے جرنلزم یعنی پوری دنیا کے حالات کے اوپر بات ہوا کرتی تھی. لائیو کالز لینے کا میں عادی تھا. 2019 کے آخر میں جس وقت یہ پینڈیمک آیا ہے, میں بات کو ذرا جلدی کروں گا تاکہ آپ لوگ
تو جب 13 مارچ کو جب یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو عباس بھائی میری پھر اس وقت شہریار سے بات ہوئی کہ کیونکہ دنیا کے حالات بدل رہے تھے، میں یہ تمام چیزوں کو بیک اسکرین پہ بہت واضح طور پہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس میں ہمارے کیونکہ لاک ڈاؤن میں ہم جا چکے تھے تو کینیڈا میں جو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے ہمیں ان کو تھوڑا سا اس بارے میں ان کو ویک اپ کال دینی تھی کہ جو احتیاطی تدابیر ہے وہ کیا کیا کر لیں. تو یہ پلیٹ فارم بہت اچھا تھا، اس سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب پینڈیمک میں جب محرموں میں یہاں پابندی تھی اور مجالس وغیرہ کا سلسلہ بنتا تو ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے قائم ٹیلی ویژن کو اس بات کا میں کہتا ہوں کہ ترہ امتیاز قائم ٹیلی ویژن کو جاتا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں یہ آئیڈیا دیا تھا کہ جس طرح سے ڈرائیونگ سینما ہوتے ہیں اس طرح سے تم ڈرائیونگ مجالس کا کیوں نہیں بندوبست کر لیتے. میرے ساتھ مہمان تھے، ہم نے اس بات پہ ڈسکس کی. میرے پاس لندن سے ٹیلی فون آیا کسی صاحب کا، کسی صاحب کے توسط سے. انہوں نے کہا از اے بریلینٹ آئیڈیا، ہم اس پہ امپلیٹیشن کریں گے. اور اس کے بعد انگلینڈ میں ہوا، آسٹریلیا میں ہوا اور پھر کینیڈا میں ہوا. جو ہم نے شروع میں بات ایک، کیونکہ گفتگو میں بہت ساری باتیں آپ ایسی کہہ جاتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے کہیں نہ کہیں کام کی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد نیئر بھائی کے ساتھ ہم کربلا جاتے رہے. کربلا میں ہم لوگوں نے جتنی جو کوریج وغیرہ کرنی تھی وہ کی ہے. یہاں پہ جو پروگرام، چونکہ جیسے افتخار بھائی، عباس بھائی، آپ لوگ اور ذوالفقار بھائی، میسرم اور ہمارے جناب قبلہ جو تشریف فرمائے، یہ لوگ جو پروگرام کرتے ہیں اس پائے کا تو پروگرام میں نہیں کرتا. میری تو گفتگو جنرل ہوتی ہے، پالیٹکس کی ہوتی ہے یا عام کہہ لیں کہ معاشی مسائل کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ مجھے بڑا خوف آتا ہے جب افتخار بھائی مجھے کسی ادبی محفل میں بلا لیں کہ صاحب یہاں مشورہ بھی ہیں یا عالم بھی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ذوالفقار بھائی سے سوال کروں تو کیا کروں، میں ان سے کیا بیان کروں. تو تھوڑی سی ڈفرینٹ فیلڈ ہے، لیکن الحمدللہ قائم ٹیلی ویژن پہ بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. بہت انفارمیشن جہاں تک دے سکتے تھے دی، اور بلکہ آپ لوگوں نے جس طرح سے محنت کر کے لوگوں کو روشناس کرایا. میں آپ کو بتا دوں ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو میں ہم لوگ ایک جلوس کور کرنے گئے اقبال بھائی، تو وہاں پر کچھ لوگ ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے جو غیر مسلم تھے اور بالکل یہاں کے لوکل تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ ہم نے بتانا چاہا کہ یہاں پہ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ میسج دیں. تو ایک پیپر میرے پاس تھا، میں نے ان کو پیپر دیا. اتنے میں میرے ساتھ انجمن آ گئی. تو وہ جو انجمن آئی نا ماتم کرتی ہوئی، تو وہ سمجھے کہ شاید یہ ڈسکو پروگرام ہو رہا ہے جو افریقہ کے ڈسکو ہے. تو جناب انہوں نے ڈانس شروع کر دیا. تو میں نے جلدی سے کیمرے سے میں نے کہا بھائی یہاں سے ہٹاؤ، یہ غلط سمجھ رہے ہیں. تو ایک غلطی یہ ہوئی تھی کہ جناب لوگوں کے پاس ہم چلے گئے، وہ سمجھے کہ شاید یہ ڈانس وانس ہو رہا ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کیونکہ یہ کارا بانا وغیرہ ہوتا ہے، افتخار بھائی کو پتا ہے، وہ اسی ٹائپ کے ہے نا، کچھ آوازیں ڈالتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کربلا میں بچوں کا ماتم ہو رہا تھا. تو اس میں ہم جب گئے تو جناب بچوں کے جو عربی بچے تھے، عراقی بچے، ان کا ہم دیکھ رہے تھے، ان کو ریکارڈ کر رہے تھے. اتنے میں اس عراقی بچے کی ماں آئی اور اس نے اس سے ڈنڈے سے اس کی پٹائی لگانے شروع کر دی. گھر سے کچھ منگایا ہوگا تو ہم نے جلدی سے کیمرہ ہٹایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ماتم بیچارہ وہ کر رہا ہے، پڑھ وہ رہا ہے، اس پیچھے سے اس کی ماں اس کی پٹائی کر رہی ہے. تو اس قسم کی بات ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ جو مجھ سے مسٹیک ہوتی ہے، آج بھی شاید ہوتی ہے، کہ میں ناظرین کے بجائے سامعین کہتے لگتا ہوں، کیونکہ ریڈیو کی عادت ہے تو میرے منہ سے نکلتا ہے کہ سامعین. لیکن یہ ہے کہ بہرحال الحمدللہ جس طرح سے قائم ٹیلی ویژن اپنی ترقی کی منزل طے کر رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جہاں آپ جیسے تمام لوگ موجود ہیں، تو ماشاءاللہ میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہر آدمی اپنے پائے عروج کا ماشاءاللہ سے ماہر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور رہا سیکھنے کا، تو سیکھتے تو رہیں گے انسان جب تک قبر تک جائے گا، باقی سیکھنے کا موقع. مگر یہ کہ الحمدللہ جی اب الحمدللہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے کام سے بھرپور انصاف کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ وسیم بھائی. سلامت رہیے وسیم بھائی. کیا ہمارے درمیان امداد نفیس صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ امداد صاحب نظر نہیں آ رہے مجھے. امداد صاحب ابھی نہیں آئے. امداد صاحب نہیں پہنچے. اقبال بھائی امداد نقوی میں ہی ہوں. آپ تو دیکھیے آپ نقوی بھی ہیں اور مکمل امداد بھی ہیں. دیکھیں ہم تو آپ لوگ آپ سے بعض میں امداد لیتے ہی رہتے ہیں، تو آپ یقیناً امداد نقوی ہیں. میں نے ان سے کہا تھا میری امداد کیجیے گا، میں آپ کا ممنون ہوں گا. بس امداد جو ہے نا، دیکھیں اب امداد امریکہ سے آنی بند ہو گئی ہے، پاکستان سے امداد پاکستان سے لے لیں. عباس بھی اویلیبل ہے. جی عباس بھی اویلیبل ہے، پاکستان سے امداد لے لیجیے. نہیں اقبال بھائی اگر مجھے اجازت دیں، میں نے میری خواہش ہوگی، میں گزارش کروں گا اقبال بھائی سے کہ اگر مجھے اجازت دیں، میری آپ کو جانا ہے کہیں ضرور.
जी इस बार भी कोई मसरूफियत है जरा सी मेरी कोई? तो मैं आपके बारे में एक शेर पढ़ दूं फिर आपको बुलाता हूँ। अब तक वहां उतरते हैं खुशबू के काफिले, फूले से लिख दिया था तेरा नाम जिस जगह। अब्बास नकवी साहब हमारे मुल्क पाकिस्तान की वो अजीम शख्सियत हैं जिन्हें हर फील्ड में एक खास मकाम हासिल है। जब आप लिखते हैं तो लगता है जैसे इनका कलम से मोती निकल रहे हैं। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान पे तारे बिखर रहे हैं। और हर प्रोग्राम को बड़े खूबसूरत अंदाज में करते हैं। इनके मशहूर प्रोग्राम हैं इंतखाब ज़हरा सलामुन अलैहा और हमारे मसाइल जो पिछले दिनों मुहर्रम में बड़े मकबूल हुए थे। तो मैं अब्बास नकवी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताएं और अपनी गलतियों के बारे में बताएं और इन गलतियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। सबसे पहले कायम टीवी और पूरी टीम कायम टीवी की जो हमारे इस प्रोग्राम को बैक एंड से जो संभाल रही होती है, उस टीम का सामने मंजर पे नाम नहीं होता लेकिन बड़ी मेहनतें होती हैं उस टीम की। तो उनका, आपका, तमाम अहबाब का नहायत शुक्रगुजार। तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामाईन कराम, नाज़रीन कराम जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक। बिल्कुल इकबाल भाई, आप तो देखते रहे हैं कराची में, मेरा ताल्लुक एक मातमी अंजुमन से है और इब्तिदा निज़ामत की जब हम कहते हैं तो वो हम लोग जब किसी अज़ाई काफिले से किसी भी सतह पे किसी भी तरह से मुंसलिक हो जाते हैं तो होता यही है कि रफ्ता रफ्ता आपको जिम्मेदारियां दी जाती रहती हैं, बढ़ जाती हैं। मातमी अंजुमन में अंजुमन रज़ा हुसैनी की साथ रबीउल अव्वल को शब्देदारी होती है। बिल्कुल। तो उस शब्देदारी की मुनासबत से मुझसे कहा गया आरिफ रजा ज़ैदी साहब को, आप जानते हैं इफ्तिखार भाई, जी उन्होंने मुझसे अचानक एकदम आए और मुझसे आके कहने लगे कि अब्बास हुसैनी रज़ादार तंजीम की पर्ची एक पे लिख के नाम उन्होंने मुझे दिया, मुझसे कहेंगे जाके अनाउंस कर देंगे। तो मैं चला गया, मैं बाइक पे गया। वाकई वही वाली कैफियत जो भी खबर भी बयान कर रहे थे और दीगर अहबाब भी जानते हैं कि पहली दफा माइक पे जाना, पहली दफा कैमरे को फेस करना, वो कितना आपके लिए थोड़ा सा बिल्कुल एबनॉर्मल सा होता है। हालत खुश्क हो रहा था, 12 मुश्किल जो बड़ी मुश्किल से जो खाली दावत देनी थी अंजुमन को। तो मैंने कहा कि अंजुमन हुसैनी रज़ादार तंजीम से गुजारिश है कि तो तशरीफ लाएं और नौखाने सीना जनी करें। जब मैं बाहर आया तो मैं अपने कहीं तो बड़ा सीना फुला के आ रहा था। मैंने कहा साहब मैंने जबरदस्त ऐलान किया, माइक पे मैं आया, मैं जैसे मैं बाहर निकला तो आरिफ शाह ने मुझे एकदम वहीं बाहर निकलती इमाम बाबा के बाहर ही मुझे डांट दिया। हाँ डांट दिया भाई उन्होंने। इकबाल भाई आप तो जानते हैं उनकी वो मिनट नहीं लगाते हैं। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त डांट दिया और मैं हैरान। मैंने कहा भाई मैंने क्या कर दिया? कहने लगे यार मतलब अंजुमन और तंजीम दोनों एक ही चीज है, तुमने अनाउंस करना था हुसैनी रज़ादार तंजीम खाली। इस टाइप की गलतियां इब्तिदा में होती हैं और मेरा ख्याल है कि सब साथियों को सीखते सीखते ही हम किसी मंजिल तक पहुंच रहे होते हैं। बहरहाल चूंकि हमारा जो निजामत का शोबा है वाकई बड़ा नाजुक शोबा है। हम जब लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी मतलब बिल्कुल ही समझिए कि अटकी हुई होती है जान हलक में कि कोई चीज ऐसी ना चली जाए कि जो पॉलिसी के खिलाफ हो जाए। मतलब आपको एक पॉलिसी को एक उसके मुताबिक चलना होता है, फिर ये कोई लफ्ज आप गलत ना बोल जाएं। आप अगर कोई तलफ़ुज़ गलत बोल रहे हैं तो अमूमन हमारे साथी और अहबाब जो हैं उसको टोकते हैं और रोकते हैं। बहरहाल अभी दरमियान में एक बस वाकया छोटा सा बयान करूं कि हमारे लिए अचानक के बाज़ात प्रोग्राम जो है वो किस तरह से, मेरा अमूमन चूँकि दफ्तरी मसरूफियात कराची से बाहर ज़्यादा रहता हूँ तो मुझे गुज़िश्ता बरस सफ़र में अचानक जो है वो हमारे प्रोड्यूसर हैं आफ्ताब मंगी, बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। उनका मुझे फ़ोन आया, कहने लगे बास भाई एक प्रोग्राम करना है। तो मैंने कहा अच्छा भाई कब से करना है? अभी तो मैं कोयटा में हूँ। कहने लगे नहीं परसों से करना है। तो मैंने कहा क्या प्रोग्राम क्या है? कहने लगे जी वो हम मशी का एक प्रोग्राम कर रहे हैं और हम बराह रास्त तो उस प्रोग्राम को कर रहे होंगे। वसीम भाई हमें ज्वाइन करेंगे और बाखर ज़ैदी साहिब हमें ज्वाइन करेंगे। तो अब आप देखिए कि मैं कोयटा में होटल में था तो मैंने उनसे पहली दफ़ा तो मना किया। मैंने कहा नहीं आफ्ताब भाई मुमकिन नहीं है मेरे लिए कोयटा में ये प्रोग्राम इस तरह से कर लेना। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार बस भाई ये प्रोग्राम तो आपने करना है। अच्छा अब मरता क्या ना करता, बहरहाल मोहब्बत है आफ्ताब भाई की, उन्होंने कहा है तो मना नहीं करना था। मैंने उनसे हाँ कर दी। उन्होंने उसमें मीसम की मोहब्बतें मुझे शामिल रही और आफ्ताब ने कहा कि नहीं ऐसा है आपके साथ मीसम हम ज्वाइन करा देंगे और अगर आपको कनेक्टिविटी का इशू आता है तो मीसम आपको सपोर्ट दे रहे होंगे। और माशाल्लाह मीसम को प्रोग्राम हमारे साथ किया।
उसमें मैं आपको बताऊं कि जब हम मतलब मैं अपने घर में हूँ तो मेरी मर्जी है कि मैं अपना बैकग्राउंड किस तरह का चूज कर रहा हूँ और मेरा प्रोग्राम जो जा रहा है उसके लिए मैं स्क्रीन पे कैसा नजर आ रहा हूँ। बड़ा अहम होता है ये कि जब हम मुहर्रम के प्रोग्राम कर रहे हैं या कुछ जश्न कर रहे हैं तो उसमें आपका माहौल क्या है पीछे। अच्छा, अब उस वक्त में था जी, अब वहाँ मेरी मजबूरी क्या थी इकबाल भाई कि मैं उस वक्त एक कोयटा के एक होटल में था और होटल आप समझ सकते हैं कि किस किस्म का बहुत अच्छा होटल है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर ये तमाम सहूलियात कि आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड लगा लें वो मुमकिन नहीं होती हैं। तो अच्छा वो क्योंकि कोयटा आप जानते हैं वहाँ के जिस किस्म का मिजाज है, ज़्यादातर वहाँ पर फर्शी नशिस्त का मिजाज होता है और आपको रूम में जो बेड मिले हुए होते हैं बाहर, उसके अलावा जो कमरे हैं उनके सारे ऐसे। तो मैंने फिर वो होटल वाले से गुजारिश की, मैंने कहा यार वो ऐसा ऐसा है और मुझे प्रोग्राम करना है ऑनलाइन। उन्होंने मुझे एक जगह पे एक रूम दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा करें आप अपने इस रूम में कर लें, यहाँ कनेक्टिविटी का इशू आप कम होगा, हमारा DSL यहीं है। अब वहाँ हुआ क्या नदीम भाई, इकबाल भाई, कि मैंने अपना लैपटॉप जब सेट कर रहे होते हैं हम तो हमारे हम दानिश भाई कंट्रोल रूम से कहते कि यार फैयाज भाई दानिश भाई दोनों प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो ये लोग हमें कंट्रोल रूम से बता रहे होते हैं कि यार आपका जो लैपटॉप है ना उसका कैमरा आपके फेस के सामने सीधा रहना चाहिए। आप यकीन जानिए कि जमीन में आदमी जैसे पलथी मार के नहीं बैठ जाता है तो बिल्कुल उस अंदाज में बैठ के सामने एक कंबल तय करके उसके ऊपर फिर दूसरा कंबल तय करके फिर उसके ऊपर एक तकिया, बस आप समझिए किस अंदाज में हमने वो 10 दिन वो प्रोग्राम किया। और लेकिन बस वही वाली बात है कि हम इन चीजों को चूंकि अपने अकीदती उससे देखते हैं नजरिए से, तो यकीन जानिए कि उस प्रोग्राम में रिक्कत भी हुई। बहुत से मौके ऐसे आए कि जब वसीम भाई या बाकर भाई जो हमें करबला की उस मशी और उस मातम और जरी के मनाजिर दिखा रहे होते थे तो क्या कमाल रिक्कत होती थी, कितना कमाल वो प्रोग्राम हुआ, बीबी ने कबूल किया और हमने इतने ऑकवर्ड हालात में उस सब कुछ को किया। तो बाहर खैर मैं आप तमाम को और ख़ासकर टाइम टीवी की टीम को इस प्रोग्राम को ईद के हवाले से करने को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अपने तमाम उन साथियों को उलमा, ज़ाकिरीन, शोरा, मुहक्काम, मातमी हज़रात जो आज हमें मौजूद नहीं हैं, हम उन्हें याद भी कर रहे हैं और उनकी दुआ वो भी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाएं। आमीन। हम लोग इसी तरह से साथ साथ एक दूसरे के साथ सीखते रहें, एक दूसरे के साथ बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। मैं बस आपका शुक्रिया जनाब अब्बास भाई कि आपने हमें वक्त दिया। जब कभी अपना हाल देखते हैं हम सितारों की चाल देखते हैं, जब कभी अपना हाल देखते हैं हम सितारों की चाल देखते हैं। वो दिखाते हैं बातों का, वो दिखाते हैं रंग बातों का, हम भी उनका कमाल देखते हैं। क्या बात है, हम क्या कमाल। वाह वाह वाह। एक ऐसी शख्सियत का कमाल जिनका नाम निजामत के साथ सोसखानी के हवाले से बड़ा मोतबर है। आज़ादारी और हमारी यादें, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे नाज़रीन की जहनों में समा गया है और उनकी जो बातें हैं ज़फ़ार हुसैन जाफरी साहब की, वो हर एक की ज़बान पर है। मैं जनाब ज़फ़ार जाफरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं और हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने इस उम्र में क्या क्या गलतियां की हैं। आपस की बात है। जी जी, बहुत शुक्रिया भाई। ये जुमला बड़ा खूबसूरत आया। ये इकबाल भाई इस उम्र में क्या क्या गलतियां की आपस में। ये खूब नदीम साहब बोल रहे हैं कि आपस की बात है, लेकिन पूरी दुनिया आपस की बात है ना। हम बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। हमारी तो पूरी दुनिया देख रही है। नवाब साहब पूरी दुनिया देख रही है, यकीनन बिल्कुल पूरी दुनिया तक प्रोग्राम जा रहा है ये। लेकिन ये बात तो हम नाज़रीन की आपस की है ना, आपस की है। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं तमाम, आज ईद का दिन है, तमाम मोमिनीन और मोमिनात को और तमाम हाजरीन को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज मैं सबसे पहले इकबाल भाई को ज़रूर मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने आज एक आम प्रोग्राम जो हमारे रवायती प्रोग्राम होते उनसे अलग हटकर ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। और सब आपके ताउन से हुआ है सरकार। ना सिर्फ तरतीब दिया है
بلکہ یہ ایسا پروگرام ہے کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا گناہ کیے ہیں بھائی. تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. عید کا دن ہے تو اس میں ہنسی خوشی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف یہ کرا دوں کہ میں تقریباً گزشتہ میرے خیال سے مجھے 50 سال ہو گئے کہ سوز خانی نوحہ خانی کرتے ہوئے. ہاں کراچی میں میرا تعلق جو تھا وہ جعفریہ امام بارگاہ گولی مار سے تھا. تو وہاں تقریباً کی 200-250 گھر تھے. ان میں سے تقریباً 150 کے قریب عزا خانے تھے. تو وہاں سوز خان جتنے تھے نوحہ خان جتنے تھے وہ 250 گھروں میں جانا ہوتا تھا. تو سب پھر لگ جاتے تو سب سیکھ ساکھ کے تو ہم پہلے کسی نہ کسی کی وہ بازو بنتے تھے. فائق حسین رضوی جو سوز خان تھے وہ میرے ماموں تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا. تو بہرحال سوز خانی کا رہا سلسلہ. اور پھر نوحہ خانی زمانے میں بڑا کریز تھا کراچی میں کہ پی ٹی وی کا اکیلا ہوتا تھا. تو وہ محرم میں تمام انجمنوں کو نوحہ خانوں کو انوائٹ کرتے تھے کہ پی ٹی وی پہ وہ نوحے پڑھیں. تو میرے ساتھ کچھ خوش قسمتیاں تھیں. میں وہ نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے ہر سال تقریباً مجھے اتنا یاد ہے کہ سب سے پہلے میں نے نوحہ پی ٹی وی پہ 85 میں پڑھا تھا. اور جب میں یہاں کینیڈا آیا ہوں 2002 میں تو 2001 تک پڑھتا رہا ہر سال. تو وہ ایک الگ چیز ہے. اب بات ہوتی ہے نظام کی. کیوں کہ تو میں تو نوحہ خانی اور سوز خانی کرتا تھا. نظامت کا تو مجھے کوئی اتنا وہ نہیں تھا یا اس طرف کبھی راغب نہیں ہوا. مگر اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ہمارے شہریار کو جاتا ہے سارا کریڈٹ. کہ ہوا یہ کہ میں قائم ٹی وی تو بہت شروع سے ہی دیکھ رہا تھا. جب سے قائم ہوا تھا تو میں ایک تقریب میں میرے خیال سے رجب کے کونوں کی نیاز تھی تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا, میرے برابر شہریار بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسی بات ہوتی رہی ہے وہ. تو میں نے کہا یار شہریار میرے پاس کچھ آئیڈیا ہیں کہ یار ان پہ بھی کوئی پروگرام کرواؤ. تو انہوں نے کہا اچھا آپ جائیے گا نہیں, میں آپ میرا ویٹ کیجیے گا اور اگر آپ کیا کہتے ہیں میں پہلے فارغ ہوئے تو میں آپ کا ویٹ کروں گا, آپ سے بات کرنی ہے. خیر کہا کہ ہم آگے بات. تو انہوں نے ذوالفقار بھائی کیا آئیڈیا ہیں آپ کے. میں نے بتایا یہ 3-4 بتائے. تو انہوں کو یہ آزاداری اور ہماری یادیں والا پروگرام پسند آیا. تو میں نے یہ کہا پہلے ہم کس کریں آپ ہی کریں گے. ارے میں نے کہا یار میں نے تو کبھی بھی نہ نظامت کی ہے نہ کچھ کی ہے. تو کہنے لگے نہیں آپ کو کیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں مگر میں اپنے ساتھ پیچھے بیک پہ ایک بندے کو رکھوں گا. کہہ لیں کون. میں نے کہا بھائی نیئر بھائی. وہ ایسے ہیں کہ وہ سنبھال لیتے ہیں. تو میں آپ اگر میرے پروگرام دیکھیں گے جتنے زیادہ تو اس میں نیئر بھائی آپ کو ضرور ملیں گے. تو کیا غلطیاں ہوتی ہیں. تو جہاں غلطیاں ہوتی تھی نا تو وہ نیئر بھائی مجھے غلطی سے پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ بھیا یہاں پہ تم کھسک رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ پروگرام جب کیا میں نے تو مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. افتخار مجھ سے بہت اچھی طرح واقف ہے. افتخار اور نیئر بھائی دونوں میں ایک بڑی خصوصیت ہے کہ یہ ایک سمجھ لیں کہ ٹیلی فون ڈائریکٹری ان کے پاس ہے کہ جس کا آپ کو نمبر چاہیے تو نمبر چاہیے. ہاں وہ نمبر مجھے بھی نمبر دیا تھا انہوں نے. ہاں تو بہرحال پھر میں نے نیئر بھائی سے بیٹھ کے میں نے کہا میں نے پنگا تو لے لیا یہ شہریار سے تو کس طریقے سے شروع کرنا ہے. انہوں نے ذوالفقار بھائی آپ جانے آپ کا کام جانے. میں نے کہا اچھا. بہرحال پھر جب وہ کہتے ہیں نا جب سر پر گرے پہاڑ تو فریاد کیا کرے. تو پھر ہم نے پھر وہ آئیڈیا لگایا. ہم نے کچھ پوائنٹ سوچے کہ بھی چونکہ عزاداری ہماری یادیں ہیں تو اس میں ہر یاد کو لے کے آنا ہے. اس میں پرانے نوحے بھی لے کے آنے ہیں, پرانے شعراء کو بھی لے کے آنا ہے, شب داریاں میں کیا ہوتا ہے وہ بھی لے کے آنا ہے, ٹی وی پہ کیا پروگرام ہوتے تھے وہ آنا ہے. تو وہ پھر تو موضوع پہ موضوع پھر وہ ملتے رہے بہت بڑا. اور میرے خیال سے مطلب 30-40 اس کے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کتنے ایپیسوڈ چلے ہیں. تو ان پروگراموں کے بعد جب وہ ختم ہوا ان پروگراموں میں تو غلطی نہ ہو سکی مگر اگلے جو دوسرا جو مجھے ملا پروگرام وہ ملا تھا. اچھا وہ بھی پروگرام کیسے ہوا کہ قائم ٹی وی پہ وہ ٹکٹ چلتے ہیں نا ہر امام کے معصومین کے قول کے بارے میں. تو میں دیکھتا رہا
तो मैंने शेयर से कहा यार इस पर क्यों ना प्रोग्राम किया जाए सारा, तो उन्होंने कर लें। तो वो प्रोग्राम अक़वाल मासूमीन और हमारा मुस्तकबिल, जब ये कायम टीवी वो 50 इयर्स का क्या कर रहे थे, 2050 के ऊपर वो बात कर रहे थे, तो मैंने कभी उसी से रिलेट करके तो वो प्रोग्राम चला। तो अब वो मैं उस वाक़े की तरफ आ रहा हूँ। जब वो प्रोग्राम चला तो एक हमारे कादमी साहब हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क में नौखान है, वो थे इस प्रोग्राम में, और नैयर भाई थे। तो नैयर भाई ने कहा जुल्फ़िकार भाई आप चारदा मासूमीन पे तो प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर सबसे पहले फिर कुरान पे भी तो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, कुरान के कौल पे भी तो आप करें बात, फिर उसके बाद आ जाएं। तो बहरहाल वो चलते रहे प्रोग्राम। तो जिस प्रोग्राम का मैं हवाला दे रहा हूँ उसमें नैयर भाई और काज़मी भाई थे। तो उस प्रोग्राम में, अब मुझे याद नहीं किस इमाम का कौल था कि घर का सरबराह जो है वो मर्द को होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ भाई नैयर भाई क्या कहते हैं इस प्रोग्राम पे? कहने जुल्फ़िकार भाई आपने तो मार पड़वा दिया, घर पे बैठ के कहा हमें जाने के लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। काज़मी भाई भी कहने लगे भैया ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं भाई इमाम का कौल है वो तो स्किप नहीं हो सकता, हमारी अपनी बात जाएगी वहां। तो वो एक ये चीज रही। फिर दूसरा ये रहा है, अक्सर प्रोग्रामों में ये होता है कि 2-2 3-3 जो होते हैं ना, तो उनको नाम से हम पुकारते हैं, तो बाजुकात नाम में गड़बड़ाहट थोड़ी सी हो जाती है, या उनका वो तारुफ कराते वक्त हमें उन्होंने बताया था कि वो इंजीनियर हैं, तो बाद में पता लगा भाई वो तो अकाउंटेंट हैं, आप उनको इंजीनियर कह रहे हैं। तो ये गलतियां होती रही हैं। अभी इफ्तिखार ने एक साहब का नाम लिया था कि जो गलतियां फौरन बता देते हैं, तो उन साहब का मेरे साथ भी ताल्लुक रहा था। तो मैंने प्रोग्राम से पहले सूरह इन्ना अंज़लना में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के अल्लाह दुरूद के बाद में एक आयत पढ़ता था, फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू किया करता था। तो सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ी, हालांकि जिंदगी भर पढ़ते रहे, मगर वो कहते हैं ना जब किसी को पकड़ना होता है तो वो गलती वहीं पे करता है। वो रजी भाई तार लगा के बैठे हुए थे, कहाँ गलती करेगा। तो मैंने उसमें है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र है, मैंने उसको पढ़ दिया लैलतुल क़द्र। बस भाई उसके बाद तो उनके लंबे मैसेज के जनाब आपने तो ये बड़ा ब्लंडर कर दिया, आपको टीवी पे आना ही नहीं चाहिए आपको। तो मैंने कहा भाई सारी जिंदगी सुनते हैं, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है और बहुत सी चीजें हैं, और फिर हम अरबी दान नहीं है। मैं अपने आप को अरबी दान नहीं कहता, मैंने अरबी नहीं पढ़ी है, जो कुरान पढ़ा है वो उससे है, मगर ये तो नहीं ना कि हमें नहीं होगा, हम स्लिप ऑफ टंग करते हैं। ये जानबूझकर या डेलिब्रेटली नहीं हुआ है, नहीं होता, बिल्कुल इस तरीके की बात होती है। फिर दूसरा ये एक जो खुशी होती है, जो इकबाल भाई आपको भी होती होगी, इफ्तिखार को भी होती होगी, मैसम को भी होगी, नवाब भाई को भी होती होगी, कि जब हम कोई प्रोग्राम हमारा ऑन एयर जाता है ना, तो वो हमें लोगों की तारीफ से या लोग जो उसके अप्रिशिएट करते हैं ना, उससे बड़ा दिल को वो मेहनत वसूल हो जाती है, आज वसूल हो जाती है, को हमें ये हमें वाकई बड़ी खुशी होती है। जुल्फ़िकार भाई यहाँ एक थोड़ा सा मैं इजाफा इसमें कर दूं। पॉजिटिव तो बात ठीक है कि लोग जब हमारी तारीफ करते हैं कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, वो ठीक है, लेकिन मुझे वहां पर भी इत्मीनान होता है कि जब कोई तनकीद करता है ना मुझ पे मैसेजेस करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि अच्छा ये सबसे बड़ी बात है कि प्रोग्राम देखा जा रहा है। लोग देख रहे हैं तो तनकीद कर रहे हैं ना इफ्तिखार भाई, वो देख रहे हैं तो तनकीद कर रहे हैं ना, नहीं मतलब वो लगन से देख रहे हैं, करते हैं। अच्छा उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए, बल्कि हमें नए आइडियाज भी मिलते हैं उनसे, बहुत से आइडियाज जो हैं वो उनसे मिलते हैं कि यार तुम यही कह रहा था अगर फलां का और कर लो यार, वो हमारे जाफर भाई थे यार, उनके नोहे चलाओ उनसे। तो अब जाहिर है जाफर भाई के नोहे नहीं है, मगर मैंने पुराने इसको क्या कहते हैं इफ्तिखार को जो नोह खान है उन सबको बुलाकर वो बुलाकर तो बड़ा अप्रिशिएट हुआ। तो उस तनकीद से हमें मतलब ये कि वो मदद मिलती है। अच्छा दूसरी एक बात जो है, मैं मतलब ये कहता हूँ कि मैं कभी किसी प्रोग्राम की तैयारी नहीं करता, माँ सवाए इसके कि मैं अपने मेहमानों को कॉल करके आ जाता हूँ
और अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक सवाल की तैयारी करता हूँ, वो बिस्मिल्लाह करके वो एक सवाल दे देता हूँ, और फिर जो उनके जवाबात आते रहते हैं ना मेहमानों से, तो उन्हीं के सवालों से मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। ये समझ। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई प्रोग्राम की लिख, हाँ ये तैयारी जरूर है, जैसे अक़वाल मासूमीन पर प्रोग्राम कर रहा हूँ तो जाहिर है वो अक़वाल तो मुझे अपने सामने रखने होंगे जो मैं पेश करूंगा, मगर उन अक़वाल पर जो कमेंट करने हैं, क्या करने हैं कमेंट, वो सब उन पे सवालात की शक्ल में करता था। एक सवाल किया, फिर उसके बाद फिर उनके जवाबात से जवाबात और सवालात में खुद बनाता रहता था। इस तरीके से एक तो ये था कि प्रोग्राम की कंटिन्यूटी रहती थी, और फिर दूसरे ये थे कि वो चूंकि हमने अपने मेहमान से ये सवाल किया तो वो मेहमान भी हमारे साथ कंटिन्यू रहता था। एक थोड़ा सा और वाकया है कि एक और कोई प्रोग्राम था मुझे याद, हाँ बड़ा अच्छा याद आ गया कि जब ये अक़वाल मासूम कहते हैं आज़ादारी और हमारी यादें खत्म हुआ, तो उसके बाद कोई एक वक्फा था तो शहरयार ने कहा यार कोई और प्रोग्राम कर लो, तो मैंने एक मौलाना साहब के साथ तारीख व हकीकत शियाने अली ये एक प्रोग्राम कर लिया। उसकी मेरे ख्याल से 15-20 कितनी भी किस्तें गई। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं सिर्फ एक सवाल करता था और उसके बाद फिर वो कर देता, तो तारीख पर सारी बात चल रही थी, तो हमारा मौजूद चल रहा था खिलाफत व इमामत। तो जब खिलाफत इमामत पर बात हो रही थी, तो वो बात हो रही, तो मौलाना साहब को मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो आ गए उस पर क्या कहते हैं हजरत इब्राहिम पर, कि हजरत इब्राहिम ने इमामत मांगी, खुदा ने उनको इमामत दी। मैंने कहा क़िबला एक छोटी सी बात मुझे बताइए, मैं भाई MA हूं और आप मुझसे कहें कि मैं आपको BA की डिग्री देना चाहता हूं, तो ये क्या बात हुई? मैंने पहले तो मुझे ये बताइए कि नबूवत रिसालत बड़ी है या इमामत बड़ी है? तो अगर नबूवत बड़ी है, जाहिर है हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, तो नबूवत बड़ी है, उसके बाद फिर इमामत है। तो ये कुरान ये क्या कह रहा है? हजरत ने जो इब्राहिम है ये क्यों कह रहे हैं कि भाई ये पहले मुझे इमामत दो? इमामत क्यों दे रही है? तो ऐसे ही हो गया ना कि MA के बाद किसी को आप कहेंगे भी मैं तुम्हें BA की डिग्री भी देता हूँ। अब वो जैसे मैंने आपसे कहा ना, मैं तो सवालों में से सवाल निकालता हूँ, अब वो मौलाना थोड़े से वो हुए, तो उन्हें कहा नहीं आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो अभी हमारे इसके और एपिसोड बाकी है ना? मैंने कहा हाँ ये 3-4 बाकी हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इस मौजू पे बात करें। हाँ, वो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मौलवी साहब ने मुझे घेर लिया कि यार ये तूने इस तरीके से तो नहीं किया, कम से कम कोई ऐसा मुश्किल सवाल है तो कम से कम पहले से तो बता दिया कि ये है। तो इस तरीके की बात हुई। ऐसे ही एक प्रोग्राम में एक साहब को लिया था, अब हमें नहीं पता था कि वो साहब शायर भी हैं, घरेलू शायर हैं, उनको मतलब हमारे शहर में रहते हैं, हमने कभी नहीं सुना उनको किसी जगह, मगर जाहिर है कि शायरी तो हर शख्स कर सकता है ना, किसी को रोक टोक तो नहीं है। तो उनको शायद हमारे प्रोग्राम में आने का पहला मौका मिला हुआ है, क्या होगा, तो वो जब शुरू कर मैं आपको अपना एक कलाम सुना, तो मैंने कहा कि कलाम का प्रोग्राम नहीं है, उसके लिए अलग है, ये जो मौजू है जिस पे हम बात कर रहे हैं ना, उस मौजू पे आप बात करें। हाँ मैं भी उस मौजू पे भी आता हूँ। और फिर उन्होंने अपनी निकाली शुरू कर दी। आप जैसे मैंने आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले गुफ्तगू की थी ना कि नाज़िम के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि वो 6 जो मेहमान हैं उनको किस तरीके से किस टाइम पे लेना है, किसको किस तरह उसको खूबसूरती से अगले बुलाना है अगले तक। वो आप यकीन करें कि वो साथ नहीं जी मैं तो अपना पूरा कलाम सुनाऊंगा, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। मैंने फिर क्या किया कि उनको फिर डिलीट ही कर दिया। उसके बाद तो वो बाद में मिले, तुमने मेरा नाम तो आया नहीं, मेरा प्रोग्राम तो आया नहीं। मैंने कहा भाई प्रोग्राम जो था ये बताओ मुझे, अगर प्रोग्राम नौहों पे हो रहा है, मर्सियों पे हो रहा है, तो तुम उस पे तबर्रुक पे बात करोगे, हलीम पे बात करोगे, बिरयानी पे बात करोगे, भाई जो चीज है उस पे बात करोगे, तुम अपना कलाम लेके। मैंने कहा तुम ऐसा करना, वो नाराज, मैंने ऐसा करना, मैं कायम टीवी पे बिल्कुल भरपूर आपकी शायरी पर एक प्रोग्राम करूंगा।
तो आप तैयार हैं अपने कलाम अच्छे अच्छे निकाल लें, मैं आपको पूरा एक कलाम आपकी शायरी पे इंट्रोड्यूस भी करूंगा, वो करूंगा। और वो बेचारे आज की डेट तक पूछते हैं मेरा प्रोग्राम कब आएगा, मैंने कहा वो वक्त भी आएगा। तो बहरहाल इस सारे प्रोग्रामों में जो मेरी जो मतलब जो मैंने निजामत की जैसी बुरी भली जिस तरीके से भी किया है वो प्रोग्राम, उसमें हमारे नैयर भाई का बहुत मेरे साथ साथ, मैं हमेशा हर प्रोग्राम करने से पहले उनसे मशावरत करता था और वो भी मुझसे कहते यार जुल्फकार भाई तुम ये इतने उम्दा उम्दा मौजू कहाँ से लेकर आते। मैंने कहा भाई आप ऐसी लोगों से इन सबसे ही सीखते हैं। एक दिल में मोमिन अगर है तो वो तो फिर अपनी जो IMI बैच से जुड़े हुए ही प्रोग्राम लेगा, इसके अलावा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। बेशक तो बेशक बेशक। तो बहुत शुक्रिया नदीम, आप सबका तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये इकबाल भाई जब नैयर भाई की बात दिखती है तो आप यकीनन सूरह फातिहा पढ़वाएंगे। मैं नैयर भाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि नैयर भाई कायम टीवी से किस तरह मुंसलिक हुए और कैसे शामिल। नैयर भाई हमारे यहाँ के बहुत जानी पहचानी शख्सियत थे, हर अज़ादारी की जान थे, रौनक थे, महफिल और हर दिल। अच्छा, हम लोगों के नौह खानी के हवाले से या मनकबत के हवाले से बड़ी हौसला अफजाई किया करते थे नैयर भाई, और निजामत भी यहाँ महफिलों की निजामत भी करते थे। नैयर भाई हमारे जो थे वो एक TV1 के नाम से यहाँ पे एक चैनल चलता है कनाडा के अंदर, उसके लिए काम करते थे अपने जमाने में। कायम टीवी और किसी इस चैनल से मुंसलिक नहीं थे, और हम लोग को वहाँ मुहर्रम में नौहा पढ़ने के लिए बुलवाते थे कि यार मुहर्रम में आके नौहा पढ़ दो, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, प्रोग्राम कर रहा हूँ। ठीक है, वो 360 टीवी था, 360 था, अली शाह का चैनल था, जुल्फकार में अली शाह का अरशद भट्टी का, जहाँ उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। दोनों प्रोग्राम अरशद भट्टी के प्रोग्राम 360 के बाद अली शाह के चैनल पर आ गए थे नैयर भाई। एग्लिंगटन पे उसका ऑफिस था, तो वहां पे नैयर, फिर हमने नैयर भाई से कहा नैयर भाई आप ये जो चैनल्स हैं जिन पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं ये तो आम चैनल है, मतलब ये कोई मजहबी चैनल नहीं है। इस पे हमारा एक प्रोग्राम होने के वजह से फिर बाद में उस पे कोई गानों का प्रोग्राम चलने लगता है या कोई एडवर्टाइजमेंट दूसरे चलने लगते हैं, तो नैयर भाई आप कायम टीवी पे क्यों नहीं आते हैं? तो नैयर बनेगा यार इफ्तिखार वहां पे, मतलब मैं किस तरह, शहरियार से उनकी इतनी बात नहीं थी हम लोगों ने। अच्छा, हमारे जहन में इकबाल भाई सच्ची बात आपने कहा है कि आपस की बात है, सच्ची बात करनी है तो मैं सच्ची बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ। हमारे जहन में इकबाल भाई एक खुद गर्जी थी, सच्ची बात बेसम आप भी सुनिए, जुल्फकार भाई आप भी, मेरे जहन में खुद गर्जी थी, मैं सच्ची बात बयान कर रहा हूँ। आपके हुक्म पे आपस की बात में खुद गर्जी हमारे जहन में थी कि हम पे जो इतना बर्डन है प्रोग्राम करने का वो कम हो जाए। नैयर भाई आ जाएंगे ना, नैयर भाई रिटायर्ड भी है, नैयर भाई के पास वक्त भी बहुत है, तो नैयर अब जो शहरियार का फोन आता है ना बार बार, यार इफ्तिखार भाई यार प्रोग्राम लेकर बैठ, अब ज़ाहिर है हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली भी है, फिर दूसरे मामलात भी होते हैं, और अंजुमन को वो नौहा खानी भी देखनी है, मनक़बत भी देखनी है, किसी महफिल की निजामत भी जाके करनी है, और एक इमाम बारगाह का जुल्फकार का था, मैं प्रोग्राम डायरेक्टर भी, उसके निजाम भी सारे चलाने। तो मैं खुद गर्जी मेरी यहाँ पर थी क्या नैयर भाई को वहां से काट के ना यहाँ ले आओ कायम टीवी के ऊपर, हमारी जो है ना जान थोड़ी सी बच जाएगी। नैयर भाई को हम यहाँ लेकर आ गए। नैयर भाई कहले इफ्तिखार भाई सही रहेगा, मैंने कहा नैयर भाई, तो अक्सर प्रोग्राम में कहते थे यार ये वाली निजामत के हवाले से आप मेरे सीनियर है, तो बोलते थे नैयर भाई आप हमेशा हमारे सीनियर है, हमेशा सीनियर रहेंगे। और आखिर में उनकी डेथ से एक हफ्ते पहले भी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई उनके घर पे बैठकर, तो काफी बातचीत हुई माशाल्लाह से। नैयर भाई ने बहुत जल्द अपना मकाम भी बनाया, और मैं बाद में मैंने सोचा कि मौला की मसलियत थी और क्या था मामला कि हम नैयर भाई को कायम टीवी पर लेकर आ गए, और कायम टीवी की नैयर भाई की एक पहचान बन गई। बिल्कुल एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ नैयर भाई की, कि जैसे आपको याद होगा ना कि खावर ने कहा कि हम सोसानी करते थे मगर ये कैमरा का हमारे साथ फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये भी मेरे साथ ही हुआ कि यार मैंने कहा कि भाई वो तो चलो हमने पढ़ा माइक पे और चल दिया, अब ये कैमरे के अंदर क्या होगा। नैयर भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो सबके लिए मैं कहता हूँ। नैयर भाई ने कहा जुल्फकार भाई आप माइक पे पढ़ते हैं ना, तो आप इसको कैमरा क्यों समझ रहे हैं, इसको आप माइक समझें। बिल्कुल 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 ऐसे नैयर भाई बड़ी हौसला अफजाई भी करते थे, बहुत हौसला अफजाई करते थे, बहुत हौसला अफजाई करते थे। रेहान भाई की अचानक जब रेहान भाई की डेथ हुई तो शहरियार का मुझे फोन आया, कह रहा है कि इफ्तिखार भाई ये लाइव प्रोग्राम अभी फौरन आप स्टार्ट कर दें, जिस हालत में बैठ जाए। मैंने कहा शहरियार ये प्रोग्राम नैयर भाई से कराओ, वजह उसके कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं को बन जाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं कर सकता। रेहान भाई से मेरी उनसियत
گھر جیسی بات تھی. اور یہاں آئے بھی تھے کینیڈا میں تو ہاسپٹل میں ان کے ساتھ رہا کنٹینیو, اور ایئرپورٹ پہ بھی چھوڑنے تک. تو میں کنٹینیو رو رہا تھا, مطلب ریحان بھائی کی ڈیتھ پر مجھ سے برداشت, کیونکہ گھر جیسی میری ان کی بات تھی, بہت ہی شروع سے میں ساتھ رہا ہوں. تو میں نے کہا شہریار مجھ سے تو بات ہی نہیں کی جائے گی تو میں پروگرام کیسے کر سکتا ہوں, تم نیئر بھائی سے کراؤ. نیئر بھائی نے پروگرام کرایا, پھر مجھے نیئر بھائی کا فون آیا, افتخار بھائی بیٹھ جائے آپ آ کر پروگرام میں, ہم بیچ میں کوئی گیپ ہوگا آپ کچھ کلام پڑھ دیجیے گا, کچھ کر دیجیے گا. تو اس طرح ہم پھر میں شامل ہو گیا پروگرام میں, کرنے لگا. تو نیئر بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کیا تھا. تو میں چاہوں گا اقبال بھائی ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بالکل, بہت موٹیویٹ کرتے تھے نیئر بھائی, مجھے بھی آن لائن ہماری ان سے بات چیت رہتی تھی, اور بہت موٹیویٹ کر رہے نیئر بھائی نے ہم لوگ کو یہاں پہ. اور سب سے بڑی بات میرا پروگرام ہوتا تھا قرآن اور سائنس, جی جی قرآن و بیت. جب نیئر بھائی نے دیکھا اسے تو انہوں نے شہریار بھائی سے کہا کہ یار اس پروگرام کو کنٹینیو رکھنا چاہیے, یہ اسے آپ نا پوائنٹ اپ مت کریں. تو پھر میں نے کہا نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی 16 ایپیسوڈ ہوں گی, اس کے بعد بھی اگر ہم چاہیں گے تو ہم اس کو کریں گے. کہ نہیں بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے ہمارا, اور اس کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں. تو نیئر بھائی جو نا ہر ایک کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے, حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے, اور مطلب پیچھے لگتے تھے ہاتھ رکھ دیا ہمارا کوئی سہارا ہے. تو ان کی بلند درجات کے لیے ایک درود پڑھ دیا اور ایک فاتحہ پڑھ دیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الفقار بھائی ابھی ایک شاعر کا تذکرہ کر رہے تھے جی, وہ کلام پڑھنے چاہ رہے تھے. مجھے ایک شاعر کا ایک واقعہ یاد آ گیا. آسٹریلیا میں ایک شاعر آئے جو نعت گو شاعر تھے. وہ جب کلام پڑھنے آئے اپنا میلبرن, تو انہوں نے کہا کہ میں سڈنی گیا اور میں نے نعت پڑھی اور رسول خدا نے مجھے مدینے بلا لیا. میں برسبن گیا, پھر رسول خدا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. پھر میں جناب علی اس کے دوسرے شہر میں گیا, پھر رسول خدا نے اپنے پاس بلا دیا. تو ایک صاحب نیچے سے کہا بھائی کبھی حمدی پڑھ کے دیکھ لو. کیا بات ہے, کبھی حمدی پڑھ کے دیکھ لو, وہ بلا لے گا تمہیں, وہ بلا لے گے. چلیں بہت شکریہ. میں عباس نقوی صاحب, سجاد شاجی صاحب, جناب خاور نقوی صاحب, میسم نظر صاحب, جناب نواب صابر, افتخار مہدی رضوی, وسیم نقوی صاحب, سید ذوالفقار حسین جعفری, سید جبران زاہدی اور انیس حیدر نقوی صاحب کا بہت ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی, اور آپس کی جو باتیں تھیں ہم نے ایک دوسرے کو بتائیں, اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے اگر پروگرام ہم کبھی کبھی کر لیا کریں تو اچھا رہے گا. مولا علی کا قول ہے جس کی زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے, رد نہیں ہوتی. بے شک آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے دل سے دعا مانگا کرو, تمہیں اپنے لیے کبھی دعا مانگنی نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو, یسرف کی کربلا کی زیارت نصیب ہو. اللہ حافظ.